2 روزہ سیمینار، داستان گوئی، شام غزل اور عالمی مشاعرے میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اردو شہروں کی زبان ہے اور اردو ادب کی ساری سرگرمیاں اردو مراکز تک محدود ہیں۔ ریاست کی تقسیم سے پہلے اردو کی تمام تر سرگرمیاں حیدرآباد تک محدود تھیں۔ ریاست تقسیم ہوئی اور سرکاری اور نیم سرکاری ادارے منقسم ہوئے، لیکن اختیارات کی منتقلی میں 3 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ اس دوران اردو اکیڈمی کی ساری سرگرمیاں التوا کا شکار رہیں، لیکن جب ڈاکٹر محمد نعمان صاحب کا نام نامی بحیثیت چیئرمین اردو اکیڈمی کا اعلان ہوا تو پوری ریاست میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹر نعمان صاحب نندیال کے میونسپل چیئرمین بھی رہ چکے ہیں اور انہوں نے اپنے دور اقتدار میں نندیال شہر کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا تھا، اور پھر آندھرا پردیش سروس کمیشن کے آپ انچارج چیئرمین بھی رہے ہیں، اور اس دوران کئی نوجوان لوگوں کی حصول ملازمت میں آپ نے مدد کی ہے، اور اب چیئرمین کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شخص اپنے کام سے پہچانا جاتا ہے، اپنے نام سے نہیں۔ اور ڈاکٹر نعمان صاحب ہمیشہ اتفاق رائے پر عمل کرتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ہم اردو اکیڈمیوں کا آغاز ان علاقوں سے کریں جو عموماً اردو مراکز سے دور واقع ہیں، اور اس کوشش کی یہ پہلی کڑی ہے، اور اس کوشش میں دست تعاون دراز کیا ہے بزم صدف انٹرنیشنل نے۔ ہم تمام اراکین کے شکر گزار ہیں۔ مسٹر نارا چندر بابو نائیڈو صاحب کی بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اقلیتوں کے لیے قابل لحاظ رقم مختص کی ہے، اور ان کی نظر انتخاب ڈاکٹر محمد نعمان صاحب پر پڑی، اور عربی میں قول ہے کہ رجل مناسب علی مکان مناسب۔ اس کا مطلب ہے کہ شخص اگر کسی صحیح مناسب جگہ پر ہو تو کام بھی صحیح ہوگا، اگر رجل غیر مناسب علی مکان مناسب تو پھر ساری کارروائی جو ہے وہ الجھن کا شکار ہو جاتی ہے۔ اب آئیے اس سیمینار کا آغاز کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے صدر تقریب پروفیسر صفدر امام صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں۔ آپ پٹنہ سے تشریف فرما ہیں، ایک بے باک صحافی اور ایک سچے ناقد اور ایک جدید لب و لہجے کے شاعر، اور بزم صدف انٹرنیشنل کے آپ صدر بھی ہیں۔ اور میں اردو اکیڈمی کے چیئرمین ڈاکٹر محمد نعمان صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہر نشین پر تشریف لائیں، اور میں بڑے ہی احترام کے ساتھ ہمارے مائنارٹی منسٹری آف مائنارٹی افیئرس کے پرنسپل سیکرٹری
जनाब के परवीन कुमार साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो शहनशीन पर तशरीफ लाएं। बज़्म सदफ इंटरनेशनल के चेयरमैन जनाब शहाबुद्दीन साहब से भी मुल्तमिस हूँ कि शहनशीन पर तशरीफ लाएं। जनाब जावेद दानिश साहब जो कनाडा से तशरीफ फरमा है, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि शहनशीन पर तशरीफ लाएं। सामईन, आपको ये जानकर खुशी होगी कि दास्तान को नए सिरे से जिन लोगों ने ईजाद किया है उनमें जावेद दानिश का नाम सर फहरिस्त है और उनके इस फन पर हुकूमत कनाडा ने आपको एजाज से नवाजा है। मैं जनाब मोहम्मद महमूदुल इस्लाम जो बांग्लादेश से तशरीफ फरमा है, मैं नहायत एहतराम से आपसे गुजारिश करता हूं कि आप भी शहनशीन पर तशरीफ लाएं। जनाब अजीम अब्बास साहब दोहा से हमारे मेहमान हैं, आपसे गुजारिश करता हूं कि आप भी शहनशीन पर तशरीफ लाएं। और कलीदी खुतबे के लिए मैं वाहिद नज़ीर साहब जो जामिया मिलिया में प्रोफेसर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, आपसे गुजारिश करता हूँ कि शहनशीन पर तशरीफ लाएं। जनाब मुअज़्ज़म अली साहब से गुजारिश करता हूँ कि शहनशीन पर तशरीफ लाएं। आइए जनाब। सामान्य हमारी खुशनसीबी है कि तमाम तर मसरूफियात के बावजूद प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब इस जलसे में मौजूद हैं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। तो आज बहुत खुशी हुई कि ये बहुत हमारे लिए एक बहुत सुनहरा मौका है कि एक बहुत महत्वपूर्ण जो लैंग्वेज है, भाषा है, उर्दू भाषा, उनके लिए हम भी हमारे जिंदगी में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अभी इसका मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और तारीफ करना चाहता हूँ। पहले हमारे उर्दू एकेडमी के चेयरमैन नौमान साहब का, और सबका नाम अभी नहीं लेता हूँ, लेकिन एक शहाबुद्दीन साहब का नाम लेता हूँ। सबके रिप्रेजेंटेटिव कि आप सबने मिलके अभी हमारे जो आंध्र प्रदेश, आज विजयवाड़ा में प्रोग्राम है, कल गुंटूर, आज रात को गुंटूर, फिर कल कर्नूल, 3 जगह पे अभी आंध्र प्रदेश में आप एक उर्दू भाषा के और हमारे जो उर्दू भाषा के रिलेटेड जो कल्चर है, इन सारे यादें और एक बार लाके फिर जितना इसके लिए हम करना चाहिए ये सबको याद दिला के और एक बार हम अपने जो उर्दू एकेडमी है ये क्या चीज़ करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, इसके लिए एक बहुत अच्छा मौका और बहुत अच्छा स्टार्टिंग ये दे रहा है। और अभी उर्दू लैंग्वेज जो इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और इसके बारे में बहुत सारे स्पीकर्स अभी बताएंगे, लेकिन जो बोलना है कि आज हिंदी नेशनल लैंग्वेज है लेकिन वो उर्दू होना था।
शुरुआत में प्रपोजल वैसा था, तो बहुत डिटेल्स है सब, अभी बहुत मशहूर साहब लोग हैं इधर पूरे, और आप भी, तो अभी आप लोग बताएंगे और वो कैसा वो कहानी है, क्या हुआ। लेकिन बात ऐसा है, इसलिए जो भी गवर्नमेंट के साइड में ऐसा जो उर्दू एकेडमी बने हैं स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश में, तो इसका बहुत इम्पोर्टेंट एक गोल होता है कि जो अचानक नहीं हुआ, फिर भी उसका जो गोल है, उसका मकसद है, उसके लिए हम क्या क्या करना चाहिए। तो आज का प्रोग्राम भी होगा, लेकिन प्रोग्राम से भी हम ये लेंगे कि यहाँ जो सूचनाएं देते हैं और एडवाइस देते हैं, ये पूरा लेके फिर उर्दू लैंग्वेज का क्या करे तो अच्छा रहता। ये साल भर और अगले साल, आने वाले सालों में करने के लिए, कोशिश करने के लिए ये बहुत अच्छा हमको इंटेलेक्चुअल एडवाइस वही करेक्ट तरीका है कि ये अच्छा है कि तकरीबन 30-40 इंटेलेक्चुअल्स पूरे इधर आए हैं हमारे इनविटेशन पे, और आप लोग बोलेंगे कि कैसे चला है तो अच्छा रहता है। तो आपके लिए अभी इतना बहुत अच्छा चेयरमैन नौमन साहब भी है, तो पूरा उनका इंस्पिरेशन से आप लोग आके हमसे बात करके पूरा ये प्रोग्राम जरूर होना चाहिए बोल के इतना मेहनत करके हमने बनाया। तो प्रोग्राम के बारे में आज कॉन्फ्रेंस होगा, दास्तान गोई होगा, फिर उसके बाद में तुम्मलपल्ली कला क्षेत्र विजयवाड़ा में गजल होता, फिर उसके बाद में गजल और मुशायरा गुंटूर में जो यहाँ से 1 घंटा दूर है, फिर कर्नूल में दोपहर से लेके 1 अप्रैल फिर कॉन्फ्रेंस होता। मतलब और एक बात समझना चाहिए, जो भी यहाँ बात करने के लिए उसका पूरा दिल नहीं भरा तो फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो काट देता है, तो आप जरा लिख के, बिकॉज पॉइंट्स हमको चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए, फिर उधर कर्नूल में बता सकते हैं, और थोड़े लोग जरा हमको लिख के भी दे सकते हैं। फिर कर्नूल में भी मुशायरा हो जाएगी। तो ये 2 दिन का प्रोग्राम है, 5 लोकेशंस है, 3 डिस्ट्रिक्ट्स है, ये भी बहुत अच्छा है। तो ब्रीफली उर्दू एकेडमी आज क्या कर रहे हैं कि अवार्ड्स दे रहे हैं, बेस्ट उर्दू टीचर अवार्ड, बेस्ट उर्दू स्टूडेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मौलाना अबुल कलाम आजाद अवार्ड। फिर आज प्रोग्राम्स हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर पब्लिशिंग मैनuscripts, प्रिंटेड बुक्स, उर्दू मीडियम स्कूल्स का सहायता करना है, वो भी प्रोग्राम में है, उर्दू लाइब्रेरीज का प्रोग्राम है, और जो गवर्नमेंट का शादी खाना बिल्डिंग्स बनती है वो उर्दू एकेडमी के कंट्रोल में रहता है। ये साल में 15 करोड़ का 43 बिल्डिंग्स सैंक्शन हुआ है। तो ये एक भाषा को जिंदा रखना और उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कि लाइब्रेरी कैसा रहना चाहिए, कि मैनuscript कैसा सिखाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, ऐसे सब चीज़ों आपसे सीख के फिर ये अपने जो दिल में हमारे उम्मीद है उसको आगे कैसे बढ़ाना, यह सब आपको सीखने का मौका आज लेने का बहुत सबको धन्यवाद। थैंक यू। हम के परवीन कुमार साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपनी तकरीर में हकीकत पसंदी से काम लिया और उर्दू एकेडमी की इसकी कीमत पर रोशनी डाली। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सच्चाई पर गर्द की तह जमा तो हो सकती है, लेकिन वक्त के हाथ उस गर्द को साफ भी कर देते हैं। आज फिर उर्दू जबान
अपनी तमाम तर तावानियों के साथ आलमी मंजर पर नुमाया है। और इस तकरीब में जो शख्सियतें मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ मौजूद हैं, इस बात का सबूत है। मैं आज की इस तकरीब के मौजू उर्दू ज़बान व अदब का आलमी मंजरनामा, इस उन्वान पर कलीदी खुतबा देने के लिए गुजारिश कर रहा हूँ जनाब वाहिद नज़ीर साहब से, जो जामिया मिलिया में प्रोफेसर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और इसके साथ में मोहतरमा अजरा नकवी साहबा, डॉक्टर गौहर साहब, डॉक्टर जाहिदुल हक और मलिका बेगम साहबा जो विजयवाड़ा की एक्स मेयर हैं। आप तमाम शख्सियात से गुजारिश करता हूँ कि शहनशीन पर तशरीफ लाएं। मोहतरमा अजरा नकवी साहबा, डॉक्टर गौहर साहब, डॉक्टर जाहिदुल हक जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में प्रोफेसर हैं, और मोहतरमा मलिका बेगम साहबा से जो विजयवाड़ा की एक्स मेयर हैं। आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि शहनशीन पर तशरीफ लाएं। अब कलीदी खुतबे के लिए दावत सुखन देता हूँ डॉक्टर वहीद नज़ीर साहब को। आज के इस खूबसूरत इजलास में उर्दू ज़बान और अदब से मुतल्लिक़ नहायत ही अहम मौजू या अहम पहलू पर गुफ्तगू की शुरुआत हो रही है। और सबसे अहम बात यह है कि इस ज़बान के जिन लहजों पर बात करनी है, उन लहजों से मुतल्लिक़ पूरी उर्दू दुनिया की अहम और बड़ी शख्सियतें भी यहाँ मौजूद हैं। उर्दू ज़बान और अदब का आलमी मंजरनामा ये निस्फ सदी से कम का किस्सा है जब हम उर्दू के ताल्लुक से इस नुक्ते नज़र से सोचने लगे। उस वक्त जब उर्दू ज़बान से मुतल्लिक़ हमारा ज़हन ये बना हुआ था कि उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई, हिंदुस्तान में ही जवान हुई, और फिर उसके बाद उसी हिंदुस्तान से पाकिस्तान वजूद में आया, बांग्लादेश वजूद में आया, और कुछ और दूर तक जो जोग्राफियाई हदें पहुंच रही थी, वहाँ तक हम उर्दू को उर्दू का वतन समझते थे। लेकिन जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा कुछ ऐसे ममालिक जहाँ पर उर्दू ज़बान के जानने वाले, उर्दू ज़बान को अपनी तहजीब और अपनी रूह का हिस्सा बनाने वाले अफराद दूसरे ममालिक में पहुँचे, तो फिर उर्दू की एक आलमी हैसियत की शबीह भी उभरने लगी। इधर चंद वर्षों से बहुत ही तुमतराज से इस मौजू पर गुफ्तगू हो रही है कि उर्दू ज़बान जो हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के उर्दू दानों के ज़रिया, उर्दू शुअरा और उर्दू उदबा के ज़रिया दुनिया के मुख्तलिफ
ممالک میں جب یہ زبان پہنچی تو وہاں اردو کی شبیہ کیسی رہی. اردو نے لسانی سطح پر اور فکری سطح پر اپنی زمین جہاں اس کی پیدائش ہوئی تھی وہاں سے مختلف کیا کیا اپنے اندر جذب کیا. موضوعاتی سطح پر اردو نے کتنی وسعت حاصل کی اور تہذیبی سطحیں، تہذیبی امور، تہذیبی نشانیاں جو ہر ملک اور ہر دیگر کلچر کا اختصاص ہوتی ہیں، انہیں اردو ادب میں، اردو شاعری میں اور اردو نثر میں کتنی جگہ مل پائی. ہندوستان اور پاکستان سے مختلف جو اردو زبان ہے، جہاں اردو زبان پیدا ہوئی، ہمارے ذہن میں وہ باتیں ہیں اور اردو ان تمام خصوصیات کے ساتھ ہمارے درمیان ہے. ہم نے اس تحریر میں یہ کوشش کی ہے کہ اپنے مولد سے باہر اردو زبان نے اپنے اندر کیا تبدیلی کی، اردو زبان و ادب نے اپنے اندر کیا مزید خصوصیات پیدا کی، اور ان اردو ادیبوں اور شعراء نے جو یہاں سے باہر گئے انہوں نے اردو شاعری کو اور اردو کے نثری نمونوں کو کس طرح سے متاثر کیا. اس سلسلے سے بہت ہی اہم موضوع جس پر بار بار ہندوستان اور ہندوستان سے باہر بھی گفتگو ہو رہی ہے وہ مہجری ادب کا موضوع ہے. یعنی وہ ادب جو ہجرت کی جگہ لکھا گیا. حالانکہ مہجری ادب میں نے اس سلسلے میں بھی کچھ معروضات پیش کی ہیں کہ کیا جو ادب باہر تخلیق ہوا یا ہو رہا ہے وہ سب مہجری ادب کا حصہ بن رہے ہیں، یا ان میں کچھ حزن و ملال کا ادب ہے اور کچھ دوسری طرح کی تخلیقات ہیں. یہ اس تحریر میں ان باتوں پر گفتگو کی گئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اسے تحریری شکل میں ہی آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ ایک منظم صورت میری گفتگو کی سامنے آ سکے. دنیا کے مختلف ممالک میں اردو تہذیب کی امانت دار، اردو کی نئی بستیوں میں جو ادب پروان چڑھ رہا ہے اس کے اسباب لسانی ابعاد اور فکری رویوں کی چھان پھٹک ابھی اتنی نہیں ہوئی ہے کہ اس ادب کی حتمی عرفیت تسلیم کی جائے. اس نقطۂ نظر سے کافی گفتگو کی گنجائش ہے کہ ایسے ادب کا کتنا حصہ توسیعی ہے، کتنا مہجری ہے اور کتنا غریب الوطنی کے نتیجے میں مہجوری ہے. اس سلسلے میں ہمیں لفظ ہجرت یعنی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں کوچ کر جانا، اس لفظ پر غور کیے بغیر ہم مہجری ادب کے جو حوالے ہیں ان پر واضح گفتگو نہیں کر سکتے. اس لیے میں نے اس لفظ کی شکلوں کو پہلے بیان کیا ہے کہ لفظ ہجرت یعنی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں کوچ کر جانا، مہاجر یعنی ہجرت کرنے والا، اور مہجر یعنی ہجرت کی جگہ یا جس جگہ ہجرت کی جائے کہ تہذیبی پس منظر پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ عربی مادہ حجرہ کے بطن سے زائدہ الفاظ ہیں جن میں کسی چیز کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا اور قطع تعلق کر لینا جیسے بنیادی
معانی پوشیدہ ہے۔ ہجرت کا تعلق محض جغرافیائی دوری سے نہیں، نقل مکانی کے ان اسباب، مقاصد، قواعد اور نوعیتوں سے بھی ہے جن کے نتیجے میں یہ عمل واقع ہوا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کے کسی ایک کنارے سے چل کر دوسرے کنارے پر پہنچنے والا شخص نقل مکانی کی نوعیتوں کے سبب مہاجر کے زمرے میں شمار نہ کیا جائے، جبکہ ایسے افراد پر بھی اسباب و علل کی روشنی میں ہجرت کا اطلاق ہو سکتا ہے جنہوں نے اندرون ملک ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں توطن اختیار کر لیا ہو۔ اہل عرب ان بادیہ نشینوں کو مہاجر کہتے تھے جو شہر کی طرف منتقل ہو کر آ جاتے۔ اس حوالے سے قرآن کریم کا نظریہ بالکل جداگانہ ہے۔ قرآن کے مطابق مرد مومن جہاں قیام کرے، نظام خداوندی کے نفاذ کی کوشش کرے، وہاں کی فضا سازگار نہ ہو تو وابستہ نہ رہے، بلکہ ایسے مقام کی طرف کوچ کر جائے جہاں اس کے امکانات ہیں۔ گویا قرآن کے نزدیک دینی مقاصد کے لیے عزت، قوت، رشتہ دار، وطن سب چھوڑ کر کسی سازگار علاقے کی طرف کوچ کرنا ہجرت ہے۔ مہاجر اور ہجرت چونکہ اسلامی تاریخ کے ایک اہم موڑ کی نمائندگی کرتے ہیں، اس لیے اردو سماعتیں ان لفظوں سے بخوبی مانوس ہیں۔ ہم مہاجر لفظ بھی بار بار سنتے رہتے ہیں اور ہجرت بھی، لیکن مہجر کی اجنبیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لفظ اپنے صوتی حسن کے باوجود اردو کی بیشتر لغات میں اندراج کا منتظر ہے۔ ڈکشنریوں کو اٹھائیے، اردو لغات کو اٹھائیے تو مہجر لفظ ایک آدھ ڈکشنری میں مل جائے جو بہت ہی جدید ہے تو بہت ہے، ورنہ کہیں لغت میں یہ لفظ نہیں ملتا۔ اس اجنبیت کے پیچھے بھی لفظ کا تہذیبی پس منظر کار فرما ہے۔ غور کیجئے کہ مہاجر فاعل ہے، ہجرت فعل ہے اور مہجر ایسا اس میں ظرف جو فاعل کا مسکن ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں مہاجر اور ہجرت بار بار مذکور ہوئے لیکن لفظ مہجر غیر مانوس ہے؟ اس کا سبب صرف اتنا ہے کہ مہاجر اور ہجرت رسول رحمت کی نسبت سے شرفیاب ہو کر باعث برکت ہو، لیکن رحمت رسول کو یہ گوارا نہ ہوا کہ جس جگہ ان کے قدم پڑے وہ مہجر سے موسوم ہو کر حزنیہ معنی کی علامت بن جائے، لہذا یثرب مدینہ ہو گیا، مہجر نہیں۔ اس طرح تاریخ اسلام کے باب میں اس لفظ کی کوئی تہذیبی اہمیت نہیں رہ گئی۔ اس اجمال کے بعد اب اردو زبان و ادب کے تناظر میں ہجرت، مہاجر اور مہجر پر غور کیجئے۔ بر صغیر ہند و پاک اردو کا مولد بھی ہے، مسکن بھی اور مرکز بھی۔ آج اردو اپنے مولد و مسکن میں زندہ و تابندہ ہے، جہاں اردو کی جڑیں زمین میں نہیں دلوں میں پیوست ہے، اور جہاں اردو کی خوشبو فضاؤں سے سانسوں میں نہیں گھلتی بلکہ سانسوں سے نکل کر فضاؤں کو معطر کرتی ہے۔ گویا اتنا تو طے ہے کہ مہجری ادب کا تعلق زبان کی ہجرت سے نہیں بلکہ ان اہل زبان سے ہے جو تخلیقی ذہن، اردو کی خوشبو سے معطر انفاس اور اس کی محبت سے سرشار دل کے ساتھ مہاجرت کو مجبور ہوئے، یا رضاکارانہ طور پر جنہوں نے غریب الوطنی کو ترجیح دی۔ اردو میں اس کے نقوش ان ادوار میں بھی پائے جاتے ہیں جب ادبا اور شعراء کی سرپرستی درباروں کی رہین تھی۔ نیز ادب پروری عمرا اور روسا کا نہ صرف ذوق تھا
بلکہ وہ اسے تہذیبی ذمہ داری اور اپنا منصبی فریضہ بھی تصور کرتے تھے۔ ایک اجڑے ہوئے دربار سے دور دراز کے کسی ایسے دربار کی طرف جو ادب پروری اور فیض رسانی کے لیے مشہور تھا، درجنوں فنکار نے ہجرت کی، وہ بھی ایسی ہجرت کہ واپس اپنے وطن کو کبھی نہ آئے۔ ظاہر ہے وہاں بھی سبب کسب معاش ہی تھا۔ میر تقی میر کے اس شعر کو کہ کیا بود و باش پوچھو ہو، پورب کے ساکن ہو، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے، غریب الوطنی کے اظہار کرب کے علاوہ اور کیا نام دیا جا سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہجرت کا سبب کبھی اجڑے ہوئے دربار اور دربارے دربار بنے، اور کبھی یہ سبب بر صغیر کی جاگاہ تقسیم نے مہیا کیا، کبھی مغربی ممالک میں بہتر روزگار کی توقع اس کا سبب بنی، اور کبھی خلیجی ممالک میں ریگستانی چادر اوڑھے سیال گنجینے قدرت نے یہ سبب فراہم کیا۔ اس طرح اردو کی جڑیں اپنی زمین سے نمی حاصل کرتی رہی، اور اس کی شاخیں جغرافیائی حدوں کو بے معنی کرتی ہوئی دنیا کے الگ الگ خطوں سے نمو پذیر ہوئی۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ان خطوں میں قسمت آزمائی کرنے والے سبھی فنکار مہاجر اور ان کی نگارشات پر مہجری ادب کا لیبل چسپاں کر دیا جائے۔ کوئی بھی تخلیق یا تحریر محض آڑی ترچھی لکیریں نہیں ہوتی، ان لکیروں میں ہمارے اچھے برے تجربات، خوشی یا غم کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جذبات و احساسات کی سرگوشی یا تلاطم خیزی مخفی ہوتی ہے۔ بالواسطہ اور بلا واسطہ ہماری زندگی کا سابقہ جن حالات سے پڑتا ہے، وہی ہمارے باطن کی ٹوٹ پھوٹ یا زیب و زینت کے محرکات ہوتے ہیں۔ خارجی عوامل ہی وہ طلائے خام ہیں جنہیں فنکار اپنے وجود کی بھٹی میں تپا کر طلائے احمر بناتا ہے۔ گویا احساس کا تعلق اس صورتحال سے ہے جس سے ہم دست و گریباں ہوتے ہیں۔ جس فنکار نے ہجرت کی واقعی صورتحال کا سامنا نہیں کیا ہو، اب یہاں سے کچھ گفتگو سوالات کی شکل میں سامنے آ رہی ہے کہ جس فنکار نے ہجرت کی واقعی صورتحال کا سامنا نہیں کیا ہو، اس کی تحریریں مہجری کرب کا آئینہ نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر جلد کے امراض کا ماہر ڈاکٹر ایک مریض کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ آپ سیرپ کی ایک فائل پی لیجئے، جلد کے امراض سے محفوظ رہیں گے۔ دوسرے مریض سے کہتا ہے کہ زخم معمولی ہیں، 2-4 دنوں میں بھر جائیں گے۔ تیسرے مریض سے وہ یہ کہتا ہے کہ زخم ناسور بن چکا ہے، پیر کاٹنا ہوگا۔ ظاہر ہے اصل مسئلہ ایک ہی ہے، لیکن مسئلے کی نوعیت الگ الگ ہونے کی وجہ سے تینوں اشخاص کے داخلی قوائف بھی جداگانہ ہیں۔ ایک شخص پیشگی تدبیریں اس لیے کر رہا ہے کہ وہ مستقبل میں زخموں کی ٹیس سے محفوظ رہ سکے۔ گویا وہ اس سے تو واقف ہے کہ ٹیس اذیت ناک ہوتی ہے، مگر اس کا مگر اس ٹیس کا تجربہ کار نہیں۔ ایک زخموں کی ٹیس میں مبتلا ہے، لیکن اس احساس انبساط کے ساتھ کہ بس 2-4 دنوں کی بات ہے، یہ زخم ٹھیک ہو جائے۔ ایک شخص کے زخموں کی ٹیس اب اس لیے بے معنی ہو گئی ہے کہ پاؤں سے محرومی کی شدت اس کے وجود پر طاغی ہے۔ اپنے وطن سے باہر دور دیس میں بسنے والے قلمکاروں کے نقل مکانی کا جائزہ لیجئے تو ایسی ہی صورتیں سامنے آتی ہیں۔ کچھ قلمکار ایسے ہیں جنہوں نے دیار غیر کا رخ اس لیے نہیں کیا کہ وہ پریشان حال تھے، بلکہ ان کا مقصد معاشی حالات کو بہتر سے بہتر بنانا تھا۔ کچھ قلمکاروں نے نامساعد حالات سے تنگ آ کر غیر ممالک میں قسمت آزمائی کا ارادہ کیا، اور کچھ قلمکاروں نے بلا شبہ اپنے وطن کو کاملاً خیر آباد کہہ کر جہاں گئے وہاں کی مستقل سکونت اختیار کر دی۔ اول ذکر دونوں قبیل کے قلمکاروں کا رشتہ اپنے وطن اور اہل خاندان سے جڑا رہا۔
اور 4-6 مہینے یا سال 2 سال میں اپنے گھروں کو آتے جاتے رہے۔ ظاہر ہے ان کی تخلیقات میں وطن سے دوری کا احساس ہوگا، وطن سے کٹنے کا احساس نہیں ہوگا۔ جہاں یاسیت اور مہجوری کے ساتھ اس امید کی جھلملاتی کرمیں بھی ہوں گی کہ بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے، ایسے قلمکاروں کے یہاں احساس اور کرب کی وہ نوعیت نہیں ہو سکتی جو مؤخر الذکر یعنی کاملاً ترک وطن کرنے والے قلمکاروں کے یہاں ہوگی، اور ہونی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہجرت کوئی نعمت نہیں جس کی تمنا کی جائے۔ جی بس ان تمام تر تفاوت سے قطع نظر اس پہلو سے بھی محاسبہ لازمی ہے کہ اپنے مولد و مسکن سے باہر وجود پذیر ادب میں اردو زبان کے مخصوص تہذیبی خصائص اور متعلقہ محجر کے تہذیبی خصائص کا کیا تناسب ہے۔ یورپ کی بستیوں میں خلق کیا جانے والا اردو ادب تجربات اور محسوسات کی سطح پر خلیجی بستیوں کے پروردہ اردو ادب سے کتنا مختلف ہے۔ وہ کون سے لسانی امتیازات اور فکری و موضوعاتی اختصاص ہیں جو ادب کے کسی حصے کو مخصوص نام سے موسوم کرنے کے لیے منطقی جواز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کلاسیکی ادب، ترقی پسند ادب، جدید اور مابعد جدید ادب کہنے کے ساتھ ہی جس طرح نظریاتی، موضوعاتی اور لسانی تشخص کے دائرے بنتے ہیں، اسی طرح محجری ادب کے مطالعے سے محجری متعلقات مثلاً انسانی رشتوں کی بازیافت، اپنوں سے علیحدگی کا ماتم، مانوس تہذیبی فضا سے بچھڑنے کا شور، غریب الوطنی کا کرب، ہجر کا تصور، ہجرت اور نقل مکانی کے حقیقی مسائل، اجنبی تہذیبی قدروں اور ملکی نظام کے احترام کے ساتھ اپنے تہذیبی تشخص کی حفاظت کے مسائل، اور ان سب کے نتیجے میں لسانی رویے کے موہوم یا بدیہی نقوش ہاتھ آتے ہیں یا نہیں۔ ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ تخلیقات تو مہاجر ہے اور ہجرت کے کرب کا گزیدہ بھی، لیکن اس کی تخلیقات موضوعی، فکری اور لسانی نقطۂ نظر سے وطن مالوف کی تربیت یافتہ ذہنی ساخت کا آئینہ ہے۔ اس کے برعکس ایک ایسا تخلیق کار ہے، یہ اہم سوال ہے، جو بر صغیر میں ہے، اس کے عزیز و اقارب غیر ممالک میں ہے۔ اس نے بذات خود ہجرت نہیں کی، مگر اس اذیت کے شدید احساسات اس کی فکر کا حصہ ہے اور تخلیقی روپ بھی لیتے ہیں۔ گویا ایک فنکار جسمانی ہجرت کے باوجود اس کا فن محجری متعلقات کے انجذاب سے قاصر ہے، تو کیا ایسی تحریریں صرف نقل مکانی کی بنیاد پر محجری ادب کا حصہ تسلیم کی جائیں گی؟ دوسرا فنکار مہاجر نہیں، لیکن اس کی تخلیقات کرب ہجرت سے شدید فکری انسلاک کی مظہر ہیں، ایسی تحریریں محجری ادب کا حصہ ہوں گی یا نہیں؟ یہ ایسے نکات ہیں جن پر غور کیے بغیر یہ فیصلہ کرنے میں شاید ہم حق بجانب نہیں ہوں گے کہ اردو کے نو آبادیاتی ادب کی حیثیت کسی زبان کی جغرافیائی توسیع کی ہے یا محجری ادب سے موسوم ہونے کی۔ بہت بہت شکریہ۔ جامع کلیدی خطبے اور تفصیلی معلومات فراہم کرنے کے لیے میں جناب واحد نذیر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اردو کے عالمی منظر نامے پر بھی روشنی ڈالی ہے اور محجری ادب کی افہام و تفہیم میں اضافہ کیا ہے۔ ہمارے درمیان آندھرا پردیش اسٹیٹ اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین جناب افسر صاحب موجود ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہر نشین پر تشریف لائیں۔ حاضرین محفل، زبانیں تاریخ و تہذیب کی پیداوار ہوتی ہیں، نہ تو کسی کے مٹانے سے مٹتی ہے اور نہ کسی کے بنانے سے بنتی ہے۔ زبانوں کا اپنا ایک خودکار عمل ہوتا ہے۔
यही वजह है कि मिटाने की लाख कोशिशों के बावजूद उर्दू ज़बान ज़िंदा है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपने वजूद का सबूत भी दे रही है। जनाब वाहिद नज़ीर साहब ने अपने कलीदी खुतबे में बांग्लादेश का जिक्र किया है और ये हमारी खुशनसीबी है कि बांग्लादेश से जनाब मोहम्मद महमूदुल इस्लाम साहब मौजूद हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने मुल्क में उर्दू की सूरत हाल पर रोशनी डालें। जनाब मोहम्मद महमूदुल इस्लाम साहब। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं बांग्लादेश से आया हूँ, लेकिन उर्दू ज़बान व अदब के फ़ुरूग में जो बातचीत हो रही है इसके तरफ मैं थोड़ा सा तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मैं पहले बांग्लादेश के हवाले से बात करने से पहले उर्दू ज़बान की हैसियत क्या है इस बारे में मुख्तसर तौर पर बताना चाहता हूँ कि उर्दू ऐसी एक ज़बान है जिस ज़बान की सरपरस्ती में 3 बड़े बड़े कौमों की खिदमत हमारे सामने है। वो क्या है? उर्दू ज़बान की जब पैदाइश हुई उस वक्त मुगलिया हुकूमत थी, उन्होंने उर्दू ज़बान की सरपरस्ती की सबसे पहले। फिर इस बर्रे सगीर में जो ज़्यादातर आवाम हम देखते हैं कि हिंदू मजहब के लोग हैं, वो भी उर्दू की सरपरस्ती कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं दुनिया में सबसे जो बड़े कौम अंग्रेज हुक्काम, वो भी उर्दू की सरपरस्ती में इस बर्रे सगीर में बहुत सारे काम किए हैं। तो जिस ज़बान की तरवीज व इशाअत के लिए इतनी बड़े बड़े 3 कौमें खिदमत अंजाम दे रहे थे, इस ज़बान की बारे में मैं क्या कहूँ, आप ही जानते हैं कि इसको दबाने से भी इनको नहीं दब जाते। फिर मैं इस ज़बान के बारे में और एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे पीएचडी का जो मकाला था वो है उर्दू ज़बान की सरपरस्ती में अंग्रेज हुक्काम का किरदार और उर्दू अदब पर अंग्रेजी अदब का असर। ये मेरे पीएचडी का मकाला का उन्वान था। तो इसमें जब मैं काम किया था उस वक्त मैंने ये देखा कि उर्दू ज़बान 3 दफा सरकारी ज़बान की हैसियत इख्तियार की थी। एक है इब्राहिम आदिल शाह सानी के दौरे हुकूमत में, दूसरा है 20 नवंबर 1937 में वो अंग्रेज ने इसको सरकारी ज़बान जो फारसी के बजाय फारसी को दफ्तर से खारिज कर दिया और उर्दू को उसका जाए मकाम कर दिया। और तीसरी दफा जो फिलहाल पाकिस्तान हुकूमत ने उर्दू को उधर सरकारी ज़बान की हैसियत दिया। तो 3 दफा इस ज़बान सरकारी ज़बान की तौर पर इसका एक ऐलान हुआ था। अब मैं बांग्लादेश की तरफ जा रहा हूँ कि आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश में उर्दू का हाल क्या होना चाहिए फिलहाल, क्योंकि 1900 तक़सीम हिंद से पहले कोलकाता और ढाका की पोजीशन एक ही किस्म की थी कि मदारी ज़बान बांग्ला और साथ साथ उर्दू भी चलते थे। लेकिन तक़सीम हिंद के बाद वहां से बहुत सारे उदाबा व शुअरा पाकिस्तान चले गए। फिर 1948 23 मार्च जब बांग्लादेश में ये ऐलान किया गया उर्दू ही यहाँ की सरकारी ज़बान बनेगी, तो बांग्लादेश के अवाम ने और वहाँ के तलबे इल्म ने इसके खिलाफ आवाज उठाई कि हम नहीं मानते हैं। तो उन पर जबरदस्ती बांग्लादेश के अवाम पर जबरदस्ती तसल्लुत करने के नतीजे में 1952 का वाक़या हुआ कि वहाँ बहुत सारे तलबे इल्म पुलिसों की गोलियों से शहीद हो गए थे। फिर ये ऐसा एक वाक़या है जिससे उर्दू ज़बान पर नफरत आ गई। इसके बावजूद भी आप देखिए कि बांग्लादेश में उर्दू का हाल क्या है कि फिलहाल ढाका यूनिवर्सिटी, राजशाही यूनिवर्सिटी में उर्दू की दर्स व तदरीस हो रही है। और आप ये जानकर खुश होंगे कि 1971 का जो हादसा हुआ था, इसके बाद ढाका यूनिवर्सिटी और राजशाही यूनिवर्सिटी में जितने पाकिस्तानी प्रोफेसर थे उनको निकाला दिया गया बांग्लादेश से, और कॉलेज के जो टीचर थे उनको यूनिवर्सिटी में टीचर के तौर पर उनका इंतखाब हुआ था। यही है हाल। और इसका अगर मैं तरवीज व इशाअत के बारे में बताऊं तो पिछला साल ढाका यूनिवर्सिटी में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हमने इनेकाद किया था
और प्रोफेसर सफ्दर इमाम कादरी साहब वहाँ मौजूद थे। वो सर ने बहुत सारे मकाले लिखे, 8 मकाले लिखे बांग्लादेश के बारे में। सर को खुद ही पता है फिलहाल बांग्लादेश में उर्दू की पोजीशन क्या है। यानी मैं ये समझाना चाहता हूँ कि इसको दबाने से भी नहीं दबती है, एक ऐसी एक जबान है। फिलहाल ढाका यूनिवर्सिटी में 400 से ज्यादा तलबा हैं। हर साल 120 तलबा उर्दू में दाखिला लेते हैं। तो ऐसा पाकिस्तान में भी मैंने कई दफा उधर गया था, तो उधर मैंने ये बताया, तो वो भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान में भी बास यूनिवर्सिटी है या ऐसी नहीं है जहाँ 400 से ज्यादा उर्दू में तालिब इल्म होते हैं। तो बांग्लादेश का फिलहाल यही पोजीशन है, क्योंकि इस जबान में एक कशिश है, एक इश्क है, एक मोहब्बत है। तो इसको जिस तरह भी इसको हमारे पास से बाहर निकलने या फेंकने देने चाहते हैं, इसके बावजूद वो करीब लाते हैं। तो यही है उर्दू का हाल बांग्लादेश में। अगर मुझे दोबारा कोई जगह मौका मिले तो मैं तफसील से बताऊं। मैं मुख्तसर तौर पर यही बताना चाहता हूँ। जनाब मोहम्मद महमूदुल इस्लाम साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं। और आप यकीन मानिए तरक्की याफ्ता कौमों को वक्त की अहमियत का एहसास होता है। और मैं हमारे मकाला निगार हजरात से गुजारिश करता हूँ कि वो 10 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करें, ताकि जो मुख्तलिफ इलाकों से ममालिक से लोग आए हुए हैं उन्हें भी अपने इज़हार ख्याल का मौका मिले। हाज़िरीन महफिल, जनाब जावेद दानी साहब हमजहद कलमकार हैं। आपने अपने ख्यालात और जज्बात के इजहार के लिए नज्म का भी सहारा लिया है, नस्र का भी सहारा लिया है, और ड्रामे के स्टेज को भी आपने बड़ी खूबी से इस्तेमाल किया है। आप कनाडा से तशरीफ फरमा हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने ख्यालात का इजहार करें। उर्दू जब हिंदुस्तान के खानकाहों, मेले ठेलों, दरबार ख़ास और दरबार आम से निकलकर 7 समंदर पार कनाडा के एयर कंडीशन ऑडिटोरियम पर हुक्मरानी कर सकती है, तो ये ज़बान कभी और कहीं भी नहीं मर सकती। ये सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स है हमारा कि हम इस पर ही बातें करते रहते हैं कि उर्दू मर जाएगी। इसको सोचने के बजाय हमें ये देखना चाहिए कि हम उर्दू के लिए क्या कर सकते हैं। कनाडा का जहाँ तक ताल्लुक है, वहाँ स्कूलों में मल्टीकल्चरल मिनिस्ट्री है हमारी, और उसके तहत एक बहुत ही ग्रास रूट लेवल की मैं बात बता रहा हूँ आपको कि अगर किसी महल्ले के, किसी इलाके के 20 बच्चे आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को या बोर्ड ऑफ एजुकेशन को 20 बच्चों का नाम आप दें, तो उनके लिए ख़ास तौर पर उर्दू के क्लास का एहतमाम और इंतज़ाम कर दिया जाता है। जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो जानते हैं। ऐसा लगता है कि साहब कनाडा में तो सारे गोरे लोग हैं, वो उर्दू कैसे बात करते होंगे, कैसे उसकी इजाज़त मिलती होगी। ऐसी बात नहीं है। सिर्फ उर्दू के साथ नहीं, दुनिया की किसी भी, वो हेरिटेज लैंग्वेज एक प्रोग्राम है हमारा, उसके तहत सिर्फ 20 बच्चे अगर आप उनका नाम दे दें, ये 20 बच्चे एक महल्ले की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी गली की बात कर रहा हूँ, एक बिल्डिंग में अगर 20 बच्चे हैं उनका भी नाम अगर दे दिया जाए, तो बोर्ड ऑफ एजुकेशन की तरफ से उस इलाके में एक जो लोकल स्कूल है उसमें बच्चे के लिए पढ़ाई का, किताबों का, पेंसिल का, कलम का, सबका फ्री एहतमाम कर दिया जाता है। और जो टीचर पढ़ाते हैं, मुझ जैसा टीचर जो मैं उर्दू पढ़ाता हूँ हेरिटेज की तरफ, तो उन्हें $30 एन आवर, 2.5 से 3 घंटे का एक क्लास होता है, तो $30 घंटे के हिसाब से उस टीचर को वो रकम दी जाती है। बच्चे पढ़ते हैं। गर्मियों में यही क्लासें जो हैं रोज़ाना की हो जाती हैं, और इस तरह बच्चे पढ़ रहे हैं। वहाँ यूनिवर्सिटी लेवल पे भी पढ़ाई है, और कोशिश हमारी ये हो रही है। मैगिल यूनिवर्सिटी है मॉन्ट्रियल में, वहाँ इकबाल चेयर है,
टोरंटो में मैं रहता हूँ, हम लोगों की कोशिश है कि बहुत जल्द वहाँ गालिब चेयर का भी एहतमाम और इंतज़ाम किया जाए। अब मैं दोहा से तशरीफ़ फरमा हमारे मेहमान जनाब अजीम अब्बास साहब से गुजारिश करता हूँ कि आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा एपी स्टेट उर्दू एकेडमी माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट को, जिन्होंने आज की इस कॉन्फ्रेंस को सजाया है, प्रिजर्विंग एंड प्रमोशन उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ये जैसा कि अभी काफ़ी सारे स्पीकर्स ने कहा है कि हम उर्दू की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। सारे यही चाहते हैं कि उर्दू की हिफाजत हो, और हो भी रही है, बहुत अच्छी तरह से हो रही है। हम इंटरनेशनल लेवल पर इसे बहुत खूबसूरती से सजा रहे हैं और संभाल भी रहे हैं। मेरी खुद की एक स्कूल है, पीपीएस की फ्रेंचाइज है कतर में। हमने वहाँ पर काफ़ी सारी मेहनत से न सिर्फ मुस्लिम बच्चों को लेकिन गैर मुस्लिम बच्चों को भी उर्दू की तरफ उनका रुझान किया है। बड़े ही अच्छे आलमी मुशायरे हमारे पास अक्सर हुआ करते हैं, जिनमें शाहबुद्दीन साहब का नाम पेश रहता है। बहुत ही अच्छे सेमिनार्स और बड़े आलमी मयार के मुशायरे हमारे पास होते हैं। अब ये है कि जैसा आज की इस महफिल में प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि आप हमें सजेशंस दीजिए। सजेशंस जरूर देना ही चाहिए हमने, क्योंकि उर्दू का एक मयार है, एक स्टैंडर्ड है, और उस स्टैंडर्ड पर उर्दू को जरूर ले जाना चाहिए। यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब चंद्रबाबू नायडू साहब का एक क्लास है, जो हमने जब ये पुराने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, हमने देखा था कि जिस शख्सियत को दुनिया का सबसे अमीर बिल गेट्स मिलने हैदराबाद पहले आता है, ना कि दिल्ली पहले आता है लेकिन हैदराबाद पहले आता है, तो उस शख्सियत की एक क्लास है। और यहाँ पे बिल्कुल एक स्कोप है जो हमने हमारे सजेशन से प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को देना चाहिए, ताकि उर्दू का एक मयारी क्लास बने यहाँ पर। आंध्र प्रदेश तेलंगाना के जैसा उर्दू के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेट बन जाए। और मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को ज़रूर उर्दू की तरफ उनका रुझान करना है। अगर हमने उर्दू की हिफाजत करना है तो बच्चों से ही शुरू करना होगा। हमारी तो बीत चुकी जितनी बीती है, लेकिन ज़्यादा करके जैसा हमारे स्कूल में इंग्लिश की तरफ ज़्यादा है। ज़रूरी है इंग्लिश, आज के माशरे में इंग्लिश ज़रूरी है, लेकिन उर्दू से भी बहुत ज़्यादा करीब रहना ज़रूरी है, वरना तो ये लैंग्वेज बचेगी नहीं, हमारे बात तो नहीं रहेगी। ये जनरेशन मेरे ख्याल से एक लास्ट जनरेशन बन सकता है, लेकिन हमारी कोशिश और मेहनत यही है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दें और बच्चों को उर्दू के करीब लाएं, चाहे वो सेमिनार्स हो, डिबेट्स हो, मुशायरे हो, या फिर आम सी शायरी हो जो उनके समझ में आती हो। बस इन लफ्ज़ों के साथ मैं आप सबका शुक्रिया। मोहतरमा आजरा नकवी साहबा को ज़हमत सलाम दे रहा हूँ। मोहतरमा ने एक तवील उम्र कनाडा और सऊदी अरब में गुजारी है। मोहतरमा एक अच्छी शायरा हैं, कहानी नवीस हैं, नावल निगार हैं, मुबस्सिर हैं, नाकिद हैं, और सऊदी अरब में आपके घर को उर्दू गाह कहा जाता था और आपका मकान उर्दू अदब की तमाम सरगर्मियों का मरकज़ था। मैं मोहतरमा आजरा नकवी साहबा से गुजारिश करता हूँ कि वो मुख्तसरन अपने ख्यालात का इज़हार करें। और बहुत सी बातें कवर हो चुकी हैं। बस ये बता दूं कि मैं क्योंकि सऊदी अरब और कनाडा दोनों जगह रह चुकी हूँ, तो वहाँ की जो मुख्तलिफ सूरत हाल थी उसको लेके मैंने कुछ लिखा था। और मगर हमारे मुल्क में नई बस्तियों का बहुत जिक्र होता है, बड़े बड़े लोग वहाँ से आते हैं, मसनद नशीन होते हैं, और नई बस्तियों में जाकर मुशायरा पढ़ने वालों को आलमी शोहरत याफ्ता शायर भी कहा जाता है। लेकिन अब मैं इसलिए कहूँगी कि नई बस्तियाँ अब सिर्फ किसी जगह जोग्राफियाई तौर पर रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। दुनिया इतनी बदल गई है कि हम इंटरनेट से, वेबसाइट से हम एक दूसरे से इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं
کہ یہ فرق ختم ہو گیا ہے کہ کون کہاں ہے. ہاں آپ نے جناب تزیری صاحب نے مہاجری ادب کی بات کی, تو میں یہ کہوں گی جو میرا تجربہ ہے, میں کینیڈا سے شروع کروں گی کہ وہاں پر جو لوگ گئے وہ پہلی نسل اردو داں تھی. تو وہی لوگ جو یہاں بھی فعال تھے, جو اپنے ساتھ ایک ادبی وراثت لے کے گئے تھے, انہوں نے لکھ رہے ہیں, بہت اچھا لکھ رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب وہاں جائیں گے تو وہاں کے نئے چیلنجز, وہاں کے تجربات, وہاں کا جغرافیہ, وہاں کے موسم آپ کے لکھنے پر, آپ کے ادب پہ اثر ڈالیں گے. اس سے نئے استعارے آئیں گے, نئی زبان آئے گی, نیا ڈکشن آئے گا, نئے موضوعات آئیں گے, اور جو ہم ایک دوسرے سے شیئر کرتے رہتے ہیں. تو کینیڈا میں بہت سارے اس زمانے میں, ابھی مجھے جاوید صاحب نے بتایا, میں تو تھوڑا نیگیٹو سوچ رہی تھی کہ بچے اردو نہیں پڑھتے ہیں, تو ابھی جو یہ نیا ہیریٹیج لینگویج ہے اس نے مجھے بہت تقویت دی. لیکن مجھے معلوم ہے ہمیشہ کہ کینیڈا جو ایک ایسا ملک ہے جہاں کی کلچرل پالیسی کلچرل موزیک کی ہے کہ ہر ایک اپنی شناخت رکھے اور تب بھی ایک ساتھ ہوں. تو اس لیے کینیڈا کی گورنمنٹ بہت ہم لوگوں کو مدد دیتی تھی کہ جس میں ہم لوگ کرتے تھے, تھیٹر کرتے تھے. اور ایک تھیٹر اور داستان گوئی جو ابھی اس کا احیاء ہوا ہے, وہ جو بچے اسکرپٹ نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں, اردو کلچر سے تو کم از کم واقف ہو سکتے ہیں, زبان سے, داستان گوئی کے ذریعے, تھیٹر کے ذریعے, وہ بہت مؤثر ایک اس کا ذریعہ ہے. اور اس کے لیے میں جاوید صاحب کی بہت شکر گزار ہوں. لیکن کینیڈا میں بہت اچھے لکھنے والے تھے. میں تخصیص نہیں کر رہی کیونکہ وہاں پہ جب ہم رہتے ہیں تو اردو میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ ہندوستانی ہے اور یہ پاکستانی, ادب صرف ادب ہوتا ہے. اور وہاں بہت بڑے بڑے لوگ تھے, ولی عالم شاہین صاحب تھے, بیدار بخت صاحب ہے جنہوں نے تحقیق کی ہے, اور بہت سے نام ہیں. خالد سہیل صاحب آج کل یہاں اخباروں میں بھی لکھ رہے ہیں, جاوید صاحب آتے رہتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں. کس کا نام لوں میں تو, اور اگر ایک اور سلسلہ ہے وہاں کہ یہاں سے لوگ بلائے جاتے ہیں. تو لیکن اس میں ایک ضرور بات کہوں گی کہ پاکستان شاعرات کے حوالے سے ایک بات کہوں گی کینیڈا یا سعودی عرب کے, کہ شاعرات جو پاکستان سے آتی ہیں بہت معتبر, بہت اچھا کہنے والی, اور ہماری شاعرات جن کو بلایا جاتا ہے, I'm sorry to say کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہندوستان کا ریپرزنٹیشن ایسا ہے. ایک کسی نے مجھے پاکستان میں کہا کہ آپ مجھے پہلی ہندوستانی شاعرہ ملی ہے کہ جو ذرا اب تعریف نہیں کر رہی, جو ذرا انٹلیکچوئل بات کر رہی ہے. تو میں نے کہا آپ غلط لوگوں کو بلاتے ہیں وہاں پہ. تو یہ صورتحال ہے. بہرحال کینیڈا میں بہت کام ہو رہا ہے, اس میں ہمیں اس کے گورنمنٹ اور خاص کر جو چھوٹے والے ٹروڈو ہیں یہ تو بہت ہی کمال کا کام کر رہے ہیں. اب سعودی عرب کی طرف آتی ہوں میں. سعودی عرب میں کیا تھا, ہم لوگ اچھا ہجرت کے, کیونکہ وہاں تو پرماننٹلی جاتے ہیں, کینیڈا میں تو ہم لوگ اور وہاں رہتے ہیں. وہاں پہ سعودی عرب میں چاہے 20 برس رہیں, اجنبی رہیں گے, لیکن اس کے باوجود سعودی عرب میں کوئی 15 سال رہی. اتنا اچھا وہاں کا ادبی ماحول تھا, وہی سے ماورا کہ کون ہندوستانی ہے اور کون پاکستانی. ایک خوف طاری رہتا تھا وہاں. لیگلی کچھ الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ مشاعرہ کریں کہیں پبلک پلیس میں, لیکن ہوتا سب تھا. اور لوگ ایک دوسرے, اور یہ نہیں کہ صرف شاعری اور تک بندی اور مشاعرے, صرف مشاعرے کرنے سے میں نہیں سمجھتی کہ اردو کی کوئی بہت زیادہ ترقی ہوگی. وہاں پر 4 اینتھولوجیز جو لکھنے والے تھے اردو کے, ہندوستانی پاکستانی 4 اینتھولوجیز, اگر میں بھول رہی ہوں, بہت سے میرے سعودی عرب کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, دلشاد نظمی صاحب, آپ ابرار مجید صاحب. تو صحرا میں گلاب, مشرق وسطی میں اردو, جہاد, اور ایک اور کوئی نکلا تھا. تو یہ تو ڈاکومنٹیشن ہو گیا. اس میں وہاں پہ کتابوں کے اجرا ہوتے تھے, تنقیدی مضامین پڑھے جاتے تھے. عورتوں کو یہ شرط تھی کہ کبھی ایک وہاں بڑا اچھا ہے استراحہ کلچر, اور محمود شاہد صاحب کا نام میں کیسے بھول سکتی ہوں کہ جو اپنے ساتھ مطلب ساری مشکلوں کو پار کرتے ہوئے اتنے بڑے بڑے مشاعرے استراحے میں کرتے تھے. استراحہ کلچر میں نہیں سمجھتی کہ اردو میں کہیں ہوگا. بڑے بڑے باہر فارم ہاؤسز میں جا کے مشاعرے کرتے تھے, رات بھر مشاعرے ہوتے تھے, بہت نئی چیزیں پڑھی جاتی تھی, اور تنقیدی مضامین لکھے جاتے تھے. اور ایک آدمی کا ذکر اگر میں نہ کروں, میں زیادہ نہیں بولوں گی, وہ تھے ہمارے زکا صدیقی صاحب جو مشرق ادھر منطقہ شرقیہ میں رہتے تھے. حیدرآباد سے ان کا بھوپال سے تعلق تھا, لیکن ان کے شاگرد کتنے پاکستانی تھے جو ان سے اصلاح لیتے تھے. تو اور پھر ایک اردو نیوز ایک اخبار تھا کہ جو شروع ہو گیا تھا, میں سمجھتی ہوں 20 سال ہو گئے, اور اردو نیوز نے بھی بہت زیادہ مدد کی ہے اردو ادب کو, اور ایک شناخت بنانے کی کہ سعودی عرب میں, مشرق وسطی میں کیا ہم نے
किया, उसमें शायद इज़हार शायरी होती है तो हर महीने एक मिसरा तरह दिया जाता था और सबकी मुंतखब गज़लें उसमें शामिल होती थी, तनकीदी मज़ामीन लिखे जाते थे और बहुत से लोग तो सिर्फ इसलिए शायर हो गए थे कि उस मशायरों की रिपोर्ट्स आती थी, फोटो छपते थे। बस इतना ही कहना चाहूँगी। बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती तकरीर थी मोहतरमा आज़रा नकवी साहबा की। जिस तरह वो शेर कहती हैं उनकी गुफ्तगू में भी वही लुत्फ मौजूद होता है। अब मैं जनाब शहाबुद्दीन साहब जो बज़्म सदफ इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं, आपसे गुजारिश करता हूं कि अपने ख्यालात का इजहार करें और बज़्म सदफ इंटरनेशनल का मुख्तसर सा तारुफ भी पेश करें। शुक्रिया। सदर मोहतरम प्रोफेसर सफदरमान कादरी साहब, उर्दू एकेडमी आंध्र प्रदेश के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद नुमान साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनाब अरविंद कुमार साहब, अजीम अब्बास साहब, जावेदानी साहब और आप खातिन हजरत, सबसे पहले मैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, यहाँ के पॉपुलर बल्कि हिंदुस्तान के एक पॉपुलर सीएम नायडू साहब, उर्दू एकेडमी के चेयरमैन नुमान साहब और प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार साहब और इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ इस कामयाब प्रोग्राम के तमाम के लिए। आप लोग एक बार तालियों से उनको मुबारकबाद पेश करें। बज़्म सदफ इंटरनेशनल ने कुछ नहीं किया है। हकीकत यह है कि सारे क्रेडिट जो है आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी को जाता है, उसके चेयरमैन को जाता है। हम तो मेहमान बन के आए हैं, मेहमानों के साथ, लेकिन आप में से बहुत सारे यहाँ मुंतज़मीन हैं। आपको ये मालूम होगा एक प्रोग्राम, एक दिन का एक जगह का प्रोग्राम करने में कितनी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है और ये 5 प्रोग्राम 3 जगहों पे इन्होंने कितना मशक्क़त किया होगा इसका अंदाज़ा लगा सकता हूँ। बज़्म सदफ इंटरनेशनल का क़याम, इसके लिए हमारे जो रिसाले हैं 1995 से आ रहे हैं, लेकिन आलमी सतह पे इंटरनेशनल लेवल पे हमने 2015 में इसका क़याम के अमल में लाया और आप सब उर्दू वालों की मोहब्बत और दुआओं से ये बज़्म 12 मुल्कों में काम कर रही है और हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा ज़िला हो या स्टेट हो जहां बज़्म सदफ का क़याम अमल में ना आया हो। हमारी टीम की ये कोशिश रहती है कि बज़्म सदफ के सहारे हिंदुस्तान की भी सरज़मीन पे अलग अलग जगहों पे उर्दू के हवाले से बात की जाए, इस पे रोशनी डाली जाए और लोगों को अपनी तरफ मतवज्जह किया जाए। जब हमारी निगाह आंध्र प्रदेश की तरफ पड़ी, हमने महसूस किया कि नुमान साहब के चेयरमैनशिप में उर्दू एकेडमी बहुत कुछ करना चाहती है और कर रही है और आप भी समझ सकते हैं कि अगर उस स्टेट का वजीर आला की ख्वाहिश ना हो तो ये नामुमकिन सा है। हमारी बात हुई चेयरमैन साहब से, उन्होंने कहा कि बज़्म सदफ की कारवां जो हिंदुस्तान और दूसरे ममालिक में उर्दू का काम कर रही है, आप हमारे यहाँ भी तशरीफ लाएं और हमारी बात हुई। आज का दिन ये मुकर्रर हुआ और हम आपके सामने में। बज़्म सदफ इंटरनेशनल किसी ज़ाती या इनफरादी
प्रमोशन के लिए काम नहीं करती। इसका मकसद सिर्फ उर्दू। हमारा एक ये भी मकसद है, जैसे अभी अजरा नकवी साहब भी बात कर रही थी और वाहिद नज़ीर साहब ने भी बहुत गुफ्तगू की अपने खलीदी खुतबा में, महजरी अदब। आप सबको मालूम होगा, जैसा अजरा नकवी साहब भी बता रही थी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के शायर अदीब जब हमारे मुल्कों में आते हैं, हम बड़े एहतमाम से उनकी हौसला अफजाई, इज़्ज़त अफजाई करते हैं। और ये बोलते हुए मुझे झिझक नहीं आता है, उनका मकसद भी सिर्फ ये होता है कि उनकी इज़्ज़त अफजाई की जाए। लेकिन कभी किसी ने ये ना सोचा कि महजरी अदब पे भी बात की जाए। आप सबकी दुआओं से पहली बार महजरी अदब पे बज़्म सदफ इंटरनेशनल ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2016 में एहतमाम किया दोहा में, और उसमें 17 मुल्कों से लोगों ने आकर महजरी अदब पे बात की। और हमने महजरी अदब की ऐसी आवाज़ उठाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगातार 3 सालों से महजरी अदब पे बात कर रही है, और हिंदुस्तान के मैक्सिमम उर्दू एकेडमियाँ महजरी अदब पे बात कर रही है, और आज आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी भी इसमें शामिल हो गई। तो आप 2 दिन के सेमिनार में उर्दू अदब का आलमी मंजरनामा पे गुफ्तगू सुनेंगे, उस पर बात होगी। मैं प्रवीण कुमार साहब को ये बताना चाहता हूँ, जैसा कि प्रवीण कुमार साहब से हमारी टेलीफोनिक गुफ्तगू भी रही, तो यहाँ आने के बाद भी, और उन्होंने स्टेज से भी गुफ्तगू की उर्दू के हवाले से। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी प्रपोजल इसके पहले भी दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी चीज़ इस बार हिंदुस्तान में लॉन्च हुई है जो पूरी दुनिया में कहीं उर्दू के हवाले से नहीं था, ई किताब का कॉन्सेप्ट। इंशाअल्लाह हम लोग आपको भी ऐसा प्रपोजल देंगे जिससे उर्दू को और आंध्र प्रदेश के जो उर्दू से मोहब्बत करने वाले हैं उनके फायदे हों। मुझे इसका अंदाजा हो गया प्रवीण साहब कि आप लोग का अज़्म, दिल से आप चाहते हैं कि आप उर्दू का काम हो। इंशाअल्लाह उर्दू के सारे लोग इस सरकार के साथ कदम ब कदम मिलाकर उर्दू के हवाले से आपको प्रपोजल भी देंगे, और आप पे प्रेशराइज भी करेंगे कि आप उसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट हैं। चेयरमैन साहब एक चेयरमैन के पोस्ट पे उनकी गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन हम उर्दू वाले अपने डिमांड के लिए आपको प्रेशराइज कर सकते हैं। मुझे वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए सिर्फ मैं ये कहूँगा कि बज़्म सदफ इंटरनेशनल उर्दू के हवाले से जो कुछ भी काम कर रही है, आप जहाँ चाहें, जिस जगह चाहें, उर्दू के हवाले से कोई भी मदद चाहिए, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी बज़्म सदफ इंटरनेशनल के डायरेक्टर हैं, और वो हिंदुस्तान में मुकीम हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उर्दू के हवाले से किताबें भी पब्लिश कर रहे हैं, अब तक 100 से ज़्यादा किताबें हमने पब्लिश किया है, जिसके गवाह हिंदुस्तान से भी कई लोग जो तशरीफ़ लाए हैं उनको है। तो बज़्म सदफ का ताउन हमेशा आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी के साथ और उर्दू के साथ हमेशा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में एक शेर में कहना चाहूँगा आप सबसे, किसे तहजीब कहते हैं तो खुद ही जान जाएंगे, किसे तहजीब करते हैं वह खुद ही जान जाएंगे, तुम अपने अपने बच्चों को फकत उर्दू सिखा देना। मोहतरम बहुत बहुत शुक्रिया आपके तयक़ुन का कि आप हमेशा आंध्र प्रदेश स्टेट उर्दू एकेडमी का ताउन करते रहेंगे। बज़्म सदफ इंटरनेशनल की एक खुसूसियत ये भी है, एक पहलू ये भी है कि शेर व अदब के सिलसिले में तो बज़्म काम कर ही रही है, लेकिन शोबे तालीम पर भी आपकी खास तवज्जो है। शहाबुद्दीन साहब का ख्याल ये है कि अगर हम एक वक्त की ग़िज़ा की रकम अगर अपने बच्चों की तालीम के लिए मुख्तस कर दें तो इस रकम से हम एक इनकलाब ला सकते हैं।
शोबे तालीम में इस ख्याल को, इस विजन को हम बज़्म सदफ इंटरनेशनल के ताउन से अमली जामा जरूर पहनाएंगे। अब मैं तासीर के एडिटर डॉक्टर मोहम्मद गौहर साहब से गुजारिश करता हूं कि अपने ख्यालात का इजहार करें। आज का जो मेन मौजू है इस कॉन्फ्रेंस का कि उर्दू को हम किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं हिंदुस्तान में और ग्लोबली। तो इस पे मैं अपना इज़हार ख्याल करना चाहूँगा। जो हमारा ख्याल है कि उर्दू को प्रिजर्व करने के लिए हम जो हमारे अंदर है, जो हमने उर्दू सीखी है, उसको हमारे बच्चों के अंदर भी उतारना होता है। और हमारे बच्चों से मतलब ये नहीं है कि हमारे बेटा या बेटी ही सिर्फ, हमारे बच्चों से मतलब ये है कि जो भी आज की जनरेशन है, चाहे वो किसी कम्युनिटी को बिलोंग करे, क्योंकि उर्दू एक किसी भी खास मजहब की नुमाइंदगी नहीं करती है, ये एक लैंग्वेज है और ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बोली जाती है। इसके बोलने वाले लोग जगह जगह पे, मैंने तकरीबन 25 कंट्री का दौरा किया है और देखा है कि सभी जगह इवन अंग्रेजी ममालिक में भी उर्दू बोलने वाले लोग हैं जो काफ़ी अच्छी उर्दू बोल लेते हैं। साथ में मैंने ये भी देखा, अभी मैं नवंबर में ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था, तो वहाँ मैंने देखा कि गैर उर्दूदा बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी भीड़ लगी है एक जगह समंदर के किनारे और कुछ पढ़ाई का माहौल चल रहा है, तो मुझे बहुत तजस्सुस हुआ और मैं वहाँ पे गया देखें कि क्या हो रहा है। तो मैंने देखा कि 10-10, 20-20 बच्चे का एक ग्रुप बना हुआ है और हर बच्चों के साथ कुछ टीचर्स हैं। सैटरडे का वो दिन था, शाम का वक्त था और उसमें कई लैंग्वेजेस सिखाए जा रहे हैं, अंग्रेजी या जो उनकी अपनी लैंग्वेज है उसके अलावा, जिसमें मैंने देखा कि कुछ बच्चे उर्दू भी सीख रहे हैं और उर्दू पढ़ाने वाले भी एक टीचर हैं। और वो ऐसा नहीं कि जिस तरह से क्लासरूम में पढ़ाई होता है उस तरह से पढ़ा रहे हैं, बल्कि जिस तरह से एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन गेम की तरह से वो पढ़ा रहे थे ताकि बच्चों को जल्द समझ में आए। तो इसको प्रिजर्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने बच्चों को उर्दू की तालीम दें शुरू से ही। उसके लिए कोई वक्त मुकर्रर ना करें कि जब वो 5 साल का होगा या 10 साल का होगा तो उसको उर्दू पढ़ाएंगे। ऑफ कोर्स कि आज की ज़रूरत है कि अंग्रेजी की, साइंस की, मैथ्स की तालीम देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आज वो बच्चे दुनिया को कम्पीट नहीं कर सकेंगे और अपनी माशी हालत बेहतर नहीं बना सकेंगे। तो अदर सब्जेक्ट्स की तालीम के साथ साथ हम अपने बच्चों को उर्दू की भी तालीम दें। और अभी मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। पटना में गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंडर में उर्दू डायरेक्टरेट आता है, तो वहाँ के कुछ लोग जो हैं हमारे अखबार तासीर में वॉलेंट्री सर्विसेज दे रहे हैं। शाम के वक्त ऑफिस में आते हैं, वो कुछ काम करते हैं। तो एक दिन का वाक़या है कि जो वॉलेंटियर्स थे तो वो 10-12 लोगों को लेकर के हमारे ऑफिस में आए। तो मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो मुझे पता चला कि ये डायरेक्टरेट के लोग जो हैं उनको उर्दू की तालीम दे रहे हैं। ये सारे जो गवर्नमेंट में या प्राइवेट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं और ये वो लोग हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं। तो इससे बहुत मुझे खुशी हुई और मैंने पूछा अपने वॉलेंटियर्स से कि आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि काम के बाद या सैटरडे और संडे को जो वक्त मिलता है उसमें वो आते हैं और अब उर्दू की तालीम देते हैं। और जब मैंने उन लोगों से बात किया तो इतनी शीरी जुबान में वो इतने एक्सेंट के साथ वो उर्दू बोल रहे थे कि ये पकड़ना बहुत मुश्किल था कि वो उर्दू नोइंग है या नॉन उर्दू नोइंग है। तो इससे मुझे पता चलता है कि अपने बच्चों में भी हम उर्दू की तालीम दें और बड़े लोगों को भी जो ख्वाहिशमंद हजरात होते हैं उन्हें भी तालीम दें। तो इस तरह से उर्दू को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रमोशन के लिए तरीका ये है कि
जो उर्दू की तालीम हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, तो उसके लिए जो है उनके फ्रेंड्स भी उर्दू सीखें, तो हम अपने बच्चों के साथ उनके फ्रेंड्स से बातचीत करें और उनके घर भी जाएं, चाहे वो किसी मजहब से भी ताल्लुक़ रखते हैं, और इस तरह से उन्हें भी समझाएं, उर्दू पढ़ने की ताकीद करें, क्योंकि ये किसी खास मजहब की लैंग्वेज नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा। तो वक्त कम है, ज़्यादा मैं तफसील से नहीं बता सकता हूँ, ये हमने अपने तजुर्बात को शेयर किया है आप लोगों के साथ। तो इन्हीं चंद कलमात के साथ मैं आप लोगों की इजाज़त चाहता हूँ। मतलब बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, उर्दू हमें इसलिए भी सीखनी है कि ये हमारी मादरी ज़बान है, हम बनिए नहीं हैं ये हिसाब लगाएं कि कौन सी ज़बान सीखने से हमारा कितना फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो मादरी ज़बान, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इलिटरेट का मतलब ये है कि वो शख्स जो अपनी मादरी ज़बान नहीं जानता, ही इज इलिटरेट। इसका मतलब आप सोचिए और अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि हम इलिटरेट हैं कि तालीम याफ्ता हैं कि गैर तालीम याफ्ता हैं। और मैं मोहतरमा मलिका साहबा से गुजारिश करता हूं, जो विजयवाड़ा की एक्स मेयर रही हैं, ये बड़े एजाज की बात है कि खातून ने इतने पूरे शहर को संभाल रखा था। ये तो स्टेज उर्दू जबान का है, मैं एक पॉलिटिकल लीडर हूँ, शायद मेरे जो ख्यालात आपके ख्यालात थोड़ा मिल सकते या नहीं सकते, ये तो पॉलिटिकल फील्ड एकदम अलग होती है। बहुत पहले चंद्रबाबू नायडू साहब को बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं 10-15 साल से पॉलिटिकल में हूँ, कभी भी विजयवाड़ा में ऐसा प्रोग्राम मैं नहीं देखे थे। ऐसा ही उर्दू अकादमी के चेयरमैन साहब डॉक्टर नौमान साहब हुए, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इतनी हिम्मत की। दक्कनी जबान भी उर्दू जबान ही का एक हिस्सा है, और विजयवाड़ा में जो उर्दू बोली जाती है वो भी उर्दू है। आप बिला झिझक अपनी जबान में अपने ख्यालात का इजहार कर सकती हैं। और दूसरी बात यह है कि उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं है, जबान का ताल्लुक मजहब से नहीं है, जोग्राफिया से है, इलाके से है। और इसकी एक और मिसाल मैं ये देना चाहूँगा कि हमारे दरमियान संस्कृत यूनिवर्सिटी से जनाब अताउल्लाह संजरी साहब यहाँ मौजूद हैं, और मुझे इत्तेफाक हुआ उनकी यूनिवर्सिटी जाने का। वो शोबे उर्दू में सदर शोबे उर्दू है। वहाँ जो पीजी में जो तलबा और तालिबात तालीम हासिल कर रही हैं, 50% जो तलबा और तालिबात हैं वो जो है नॉन मुस्लिम है और नॉन उर्दू है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपनी यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक़ या उर्दू केरला में जो उर्दू की सूरत हाल है उस पर आप रोशनी डालें। मुख्तसरन सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अपने चेयरपर्सन साहब को कि करनूल और गढ़पे को छोड़कर जसारत दिखाते हुए ये आपने फैसला किया कि यहाँ पर इंटरनेशनल सेमिनार हो। वो चेहरा जो है कस्बा के शाहिद साहब को भी जाता है कि उन्हें जो है गालियाँ सुननी पड़ी होंगी, शॉक ऑब्जर्वर हो रहे हैं बहर कहीं। तो यहाँ पर जो 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 फजा अभी बनी है, मुझे उम्मीद है कि ये फजा और खुशगवार होगी, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगा, आप समझ पाएंगे कि वो किसके लिए होगा। इकबाल का है शेर, जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, उधर डूबे इधर निकले, इधर डूबे उधर निकले। ये शेर मैं बांग्लादेश से आए हुए जो 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 मोहतरम है उनके लिए। उर्दू जबान साहब आप किधर भी दबाइए दूसरी तरफ से निकलती है, तो इसमें इत्मीनान रखिए। केरल में भी यही मामला हुआ है कि वहाँ पर ये जबान जो है उभरी है। और मैंने श्रीलंका में देखा था कि ऑफिशियल लैंग्वेज कमिश्नरेट वो जो है बहुत काम कर रहा है वहाँ पर, दोनों जबानों को लेकर चलते, सिंगलिश और जो है तमिल, हर बोर्ड में दोनों जबानें लिखी होती। बहरहाल वो एक तो मिसाल थी। और मैं यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी की नुमाइंदगी करने वाले यहाँ पर प्रवीण कुमार साहब की तवज्जो चाहूँगा। प्रवीण कुमार साहब ने वो बात कही है
सर हैट्स ऑफ टू यू, लेट मी सैल्यूट ऑन बिहाफ ऑफ द होल कम्युनिटी। इन्होंने बताया कि उर्दू जबान को ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए था, ये कोई माई का लाभ नहीं कहता, आपने कहा है। हमारी रिक्वेस्ट है कि इसे हर लोग करें, ये सच्चाई है। हम पैंट शर्ट इसलिए पहनते हैं कि इसमें आसानी है, उर्दू जबान में वो बात है कि अपनी बात मनवा के रहती है। सिर्फ मिसाल ये है, आज की तारीख में भी पार्लियामेंट में अगर सारा मामला सज जाता है, टेंशन में आ जाते हैं लोग, लड़ने झगड़ने लगते हैं, सिर्फ उर्दू का शेर ही है जो उस माहौल को खुशगवार करता है। सिर्फ एक शेर जवाहरलाल नेहरू के जमाने में हो चुका था, और आप जो है मनमोहन सिंह साहब के जमाने में भी हुआ, जब उन्होंने सुषमा स्वराज ने कहा था, सुषमा स्वराज साहबा ने कहा था, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। उसके बाद उन्होंने कहा था, तो वो उन्होंने जो दूसरी बात कही थी, मेरी सादगी देख, मेरा इंतजार देख। उसके बाद वो हुआ कि अपोजिशन वाले भी तालियां मारने लगे, तो उन्होंने बताया कि तुम क्यों तालियां मार रहे हो, बोला शेर बहुत अच्छा था सर। ये बात, तो ये मामला है। अब मैं चौथी बात ये बता रहा हूँ सब अपने शहाबुद्दीन साहब से, कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि साहब मैं सिर्फ एक छोटे से नुक्ते की तरफ आपका इशारा करना चाहता हूँ। पेड़ हो या पौधा, सरसब्ज और शादाब उसी वक्त हो सकता है जब उसकी जड़ें में नमी हो। आप ग्रास रूट लेवल की बात कीजिए, ये ग्रास रूट की लेवल की तरफ जो है इशारा अभी नौमान साहब ने शुरू कर दिया है, हम ये करेंगे। कल जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें इत्तेफाक हुआ कि मुझे वो मौका मिला, हाफिज साहब के साथ में गया हुआ था, मुझे लगा कि साहब विद ड्यू रेस्पेक्ट कि लोगों को इतना साजगार माहौल है, विद ड्यू रेस्पेक्ट तो कड़पा और कर्नूल के लोग, शाहिद साहब और मैं बता रहे थे कि साहब ये लोग तो कर्नूल और कड़पा के लोगों से सच्चे और अच्छे हैं, इतना माहौल यहाँ पर है, यहाँ पर बहुत काम हो सकता है। मैं दिल रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ साहब, दिल रखने के नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर कोई हमें कंट्रोवर्सी नहीं मिल रही है, डिफरेंसेस हैं अपनी जगह पे, उसे रखिए। अब मैं लास्ट 2 मिनट केरल की तारीफ से बता दूं कि अखलाकी फर्ज है मेरा, मैं हूँ आंध्र प्रदेश का लेकिन केरल में रहता हूँ 20 साल से, वहां पर ग्रास रूट लेवल में बहुत काम हमने किया है। बस यही बताना चाहता हूँ कि मैं जब वहां पर गया था 1000 टीचर थे, अब 2500 टीचर हैं, और डिग्री कॉलेजेस में 3 कॉलेजेस में था, अब 8 कॉलेजेस में है, और यूनिवर्सिटीज में वो मुमकिन है, 2 यूनिवर्सिटीज में और भी आ सकती है, काम हो सकता है। बस यही बात है कि हमें साथ से साथ मिलकर चलना है। डिफरेंसेस हर जगह रहते हैं सर। मेरा एक फलसफा है अपने तौर पर, जो मैं एक नुक्ता बताता हूँ कि साहब आप मिलकर रहने की कोई जरूरत नहीं है, लड़िए नहीं, बस लड़िए नहीं, मामला और हो सकता है। इस मैसेज के साथ अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब जनाब, हमने मुशायरों में शायर को मुशायरा लूटते हुए देखा है। आज संजीरी साहब ने ये तकरीब लूट ली है। मोहतरम सामीन, मैं आपकी मालूमात में इजाफा करता चलूं कि नेहरू की शादी का दावतनामा उर्दू में शाया हुआ था। आंध्र प्रदेश स्टेट उर्दू अकेडमी के वाइस चेयरमैन जनाब अफसर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। आज इतना बड़ा जलसा उर्दू का हुआ है। मैं 35-30 साल से सियासत में हूँ, ऐसा जलसा कभी नहीं हुआ। और उर्दू सीखे, उर्दू पढ़े। अब्दुल अजीज चेयरमैन, सबने कहा कि विजयवाड़ा में गुज़िश्ता 25-30 बरसों में इस तरह की कोई तकरीब मुनक़िद नहीं हुई थी, और मैं ये बात पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि जब हमारी रियासत मुत्तहिद थी तो रियासत की पूरी तारीख में, मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूँ कि रियासत की पूरी तारीख में उर्दू एकेडमी के ज़ेरे एहतिमाम इतना बड़ा जलसा कभी मुनाकिद नहीं हुआ था। इस जलसे में बैनुल अक़वामी सतह के अदीब, दानिश्वर, मुफक्किर, माहिर तालीमियात, शायर, ड्रामा नवीस मौजूद हैं। ये एक तारीखी
जलसा है और इस अजीम कारनामे के लिए मैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद नुमान साहब और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप दोनों के दरमियान इतनी हम आहंगी है, इन दोनों की केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त है और इन दोनों का जो मेंटल लेवल है वो इतना हाई है कि जिसकी वजह से आज बैनुल-अक़वामी सतह का ये सेमिनार मुनक़िद हो सका है। चेयरमैन साहब से गुजारिश करता हूं कि आए और अपने ख्यालात पैदा करें। सदर जलसा जनाब सफदर इमाम साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर जनाब प्रवीण कुमार साहब, शाहबुद्दीन साहब सदर नेशनल के चेयरमैन और हमारे वाइस चेयरमैन अफसर साहब, हमारे आसिम साहब दफ्तर से आए हुए, हमारे एक्स मेयर मलिका मैडम साहब और सामाइन उर्दू एकेडमी जो कर रही है इस ताल्लुक से हमारे शाहिद साहब, ये तमाम चीज़ों का ताउन करते हुए मुझे जिस दिन से मैं हम चार्ज लिया हूँ उर्दू एकेडमी का, यहाँ पर जब तक़सीम आंध्र प्रदेश होने के बाद एक अजीब सा माहौल था। तेलंगाना और आंध्रा में वो लोग अक्सर ये समझते थे कि उर्दू यहाँ पर नामुमकिन बात है, ऐसा आप क्यों लिए चार्ज, यह बड़ी रेगिस्तान में जो है आप पौधे उगा सकते हैं क्या। तो ये चैलेंजिंग टास्क था मेरे लिए, क्योंकि मेरी मादरी ज़बान उर्दू थी, इसके दिक्कतों से इसके तकालीफ से मुझे वाबस्तगी थी। इसके लिए मैंने पहले रायलसीमा में मुतहरिक होकर वहाँ पर कई जलसे जुलूस कायम किए। उसमें हमारे ख्वाजा रब्बानी साहब ने एक मुशायरे में निज़ामत फरमाई और उस मुशायरे में अच्छे कामयाब तरीक़े से नंदियाल में मुशायरा किया। उसके बाद करनूल में भी जो है एक जलसा और मुशायरा मुनाक़ाद किया जा रहा है। उसमें ताजुब इस बात की है, पहले तो जो चेयरमैन थे मुतहरिक नहीं थे, बनिस्बत ये लोग काम करने के नुक्ताचीनी करना इतना आसान बात है। तनकीद जो है बुरी चीज़ है, तनकीद मियारी होना चाहिए, मतलब से नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग मतलब से तनकीद करते हैं, मफाद परस्ती से तनकीद करते हैं, जिसकी वजह से इख्तिलाफात पैदा होते हैं। उर्दू ज़बान जैसा आपने कहा एक प्यारी ज़बान है, मीठी ज़बान है, सुरीली ज़बान है, जिसके एक एक लफ्ज़ में जो है जान है। आप गज़ल सुनते जाइए, आपके गम और गुस्सों सूझ जाते हैं, आप उसमें बैठ जाते हैं। उस ज़बान को जब मैं चेयरमैन बन के पहला आंध्र प्रदेश का जब चेयरमैन बना तो मैं फख्र महसूस करता हूँ। हो सकता है कि इख्तिलाफी मफाद परस्ती के लोग करते रहेंगे। तो एक साहब ने यहाँ तक कहा, नौमान साहब को गनमैन तक नहीं बना, आज तक किसी गनमैन ने किसी की जान नहीं पहुंचाई। गनमैन है क्या इंदिरा गांधी किसने मारा, गनमैन नहीं मारा। मैं उनको लेकर मैं कहा मकसद ये था कि आप लोगों में भी उर्दू का शौक जो पैदा हो, ताकि उर्दू एक तरफ जो है ये दिलचस्पी बढ़े। मेरा मकसद वही है। जब तक मैं रहूंगा, मैं उर्दू अकेडमी में कब तक रहूंगा नहीं मालूम, और जब तक रहूंगा काम करते रहूंगा। चेयरमैन साहब, गन मैनों की उन लोगों को जरूरत पड़ती है जो नफरत की जबान में गुफ्तगू करते हैं। जो शख्स उर्दू में गुफ्तगू करता है उसे गनमैन की जरूरत नहीं है, हमेशा वो गुलदस्ता साथ में लेके आपके लोग चलते रहे। सदर तकरीब जनाब सफदर इमाम कादरी, बर्न सदफ इंटरनेशनल के डायरेक्टर से एहतरामन गुजारिश करता हूँ कि आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। चेयरमैन आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटीज वेलफेयर, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के मुल्कों से आए हुए मंदूबीन, उर्दू ज़बान व अदब से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर अफ़साना-निगार, शुअरा, नक्काद और मुहक्किकीन इस महफिल में जमा है। प्री लंच सेशन की कई मजबूरियां होती हैं। एक मजबूरी ये भी होती है कि अगर उसे
जरा बढ़ा दिया जाए तो सुनने वाले का जी नहीं लगेगा। फिर जो जिस शख्स के जिम्मे सदारत हो तो उसे तो आखिर में ही बोलने की ये रस्म हमारी है, तो वो सबसे ज्यादा उसी पर निशाना साधा जाता है। हजरात, इसीलिए कोई तवील गुफ्तगू नहीं होगी, लेकिन कोशिश करूंगा कि जिस मकसद से आपने ये कॉन्फ्रेंस की है, ये आलमी सेमिनार किया है, तो इसके जो मकासिद हैं वो जरा, और अलग अलग लोगों ने जो बातें कही हैं वो कंक्रीट शक्ल में आपके सामने पेश करूं, और कुछ ऐसी तजवीज़ें भी रखूं जिससे आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी को जो एक नई जान आई है तो इसके नताइज बेहतर निकल सकें। इसलिए इख्तिसार के साथ ही इन बातों को आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। सरकारी इदारे ही नहीं, अवामी इदारे भी कभी तेज चलते हैं, कभी सुस्ती से उनकी रफ्तार सामने आती है, और कभी वो खामोश हो जाते हैं। ये कौमों की जिंदगी का एक आम तरीका है कि कभी आप बहुत तेजी से काम करते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं। हालात ऐसे होते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं। आपका सूबा इस एतबार से अजीब व गरीब सूबा है कि जब ये पूरा सूबा था और हैदराबाद इसका हिस्सा था, जब मौजूदा तेलंगाना इसका हिस्सा था, तो उर्दू के सिलसिले से ऑटोमेटिकली सारी सरगर्मियां हैदराबाद में सिमट कर रह गई थी। आज न जाने क्यों राजस्थान उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी साहब हमारे साथ स्टेज पर तो बैठे, लेकिन वो माइक तक नहीं आए। लेकिन उनकी एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उर्दू के सिलसिले से मुल्क भर में जाने का मौका मिलता है, दुनिया के कई मुल्कों में भी जाने का मौका मिला। राजस्थान उर्दू एकेडमी का एक तरीका मुझे पसंद आया कि वो अपने प्रोग्राम सिर्फ जयपुर में नहीं करते हैं, बल्कि कोशिश की है कि 5-6 रीजन में उन्होंने अपने सूबे को बांट दिया, और अगर किसी भी 5 सेमिनार तय किया तो 5 अलग अलग रीजन में होगा। इससे जो डेमोक्रेसी कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो, तो इस डेमोक्रेसी की सही पहचान हमको लगता है कि उर्दू एकेडमीज के हवाले से राजस्थान उर्दू एकेडमी ने की है। आप इसका इत्तेबा कीजिए। आपसे मेरी गुजारिश होगी कि आप भी इस तरह से भी ये 2-3 जगहों पे जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसको और बढ़ाइए। जब ये मरकज हैदराबाद में था तो ये काम नहीं हो सका। हैदराबाद उर्दू का इतना बड़ा मरकज है कि उसको ये याद ही नहीं रहता है कि छोटे मराकज की भी अहमियत होती है। अब वहां से आपका मरकज बदल गया है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि छोटे छोटे जो जिला सतह के जो मराकज हैं उनको पहचानिए, कमिश्नरी लेवल के जो मराकज हैं उनको पहचानिए और अपनी एक्टिविटीज वहां तक पहुंचाइए। जब तक ये नहीं कीजिएगा आपकी एकेडमी के जो मकासिद हैं वो पूरे नहीं होंगे। आप बड़े मरकजों को छोड़कर छोटे मरकजों की तरफ जाइए। दूसरा ये है कि जब तक उर्दू एकेडमीज को काम करने के लिए हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, वो साफ साफ उसको पता होना चाहिए कि अगर असातिज़ा उसके कंपोनेंट हैं, शायर अदीब उसके कंपोनेंट हैं, स्टूडेंट्स उसका हिस्सा हैं, तो क्या आप उन सब लोगों के जो ख्वाब हैं, सब लोगों की जो ज़रूरतें हैं, आपने अपनी एकेडमी को उनसे जोड़ने की कोशिश की? क्या अदीबों, शायरों, सहाफ़ियों को आप कहाँ कहाँ मदद कर सकते थे? आपने कभी इसका मंसूबा बनाया? अगर नहीं बनाया तो आपने कोताही की। आप फिर एक चुनी हुई 2-4-5 काम एकेडमीज करने की उन्हें आदत है, कुछ सेमिनार करा लेती हैं एकेडमियां, किताबों पे इनाम दे देती हैं, किताबों पे फाइनेंशियल असिस्टेंस दे देती हैं और मजमूई खिदमात पर इनाम दे देती हैं। हकीकत यह है कि 4-5 काम इनकी अहमियत तो है, लेकिन जिसको कहते हैं कि जड़ों की आबियाई करना, जड़ों पे पानी डालना कि वो पेड़ शादाब हो, फल फूल निकले, ये काम चारों का नहीं है। आप किताबें छाप दीजिएगा, आप पढ़ने वाले की तलाशी नहीं कर रहे हैं। आप नए लोगों को, जो बुजुर्ग लिखने वाले हैं, उनकी जो हौसला अफजाई कर रहे हैं, लेकिन नई पौध कैसे सामने आए और वो कैसे बेहतर करे, इसकी तरफ तवज्जो नहीं होती है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि एकेडमी के अरबाब से कि इस तरफ तवज्जो दें कि नई नस्ल की
तरबियत वो कैसे करेंगे। आज उर्दू को हम बार बार जब अलग आज की कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा हमने मातम किया, ज्यादा हौसला अफजा गुफ्तगू की। अक्सर उर्दू की जो कॉन्फ्रेंसें होती हैं उसमें हम पुराने जमाने को याद करते हैं और कहते हैं कि हमारा जमाना बुरा है। ये हमारे मातम करने का एक खास अंदाज है, आज ये नहीं हुआ। लेकिन अगर उर्दू को इस दौर में मजबूती से एक सोशल फोर्स के तौर पर कायम रहना है तो उसको कुछ टास्क लेने होंगे। आप ये कॉन्फ्रेंस से नहीं होगा। आपको अगर ये बात समझ में आई कि आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी एक स्टेट की एकेडमी है, लेकिन उसको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। इंटरनेशनल ही नहीं, उसके अलावा भी देखा कि नहीं सिर्फ आंध्र प्रदेश के लोग नहीं, हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों से लोग आए। ये बात समझ में आई कि ये एकेडमी एक इलाके की एकेडमी नहीं है, बल्कि पूरी उर्दू ये पूरी दुनिया के लोगों को जमा करके हम गुफ्तगू कर सकते हैं और अपने घर में कर सकते हैं। तो उसी तरह से हमारा जो नया टारगेट ग्रुप है उसको कैसे मजबूत करेंगे। क्या आपने सोचा कि उर्दू एकेडमी बहुत आसानी से उर्दू के एक जो कारोबारी जहत है वह उर्दू जो एक जबान के तौर पर हम पढ़ते हैं, आप जानते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के भी मुलाजमत नहीं मिलती है। कोई भी जबान कोई भी मजमून पढ़ के सिर्फ मुलाजमत नहीं मिलती है, बल्कि मुलाजमत के अलग तकाजे होते हैं। क्या मैथमेटिक्स पढ़ के सब आदमी प्रोफेशनली अफसर बन जाएगा? नहीं बनेगा। उसके लिए भी अलग से उसको काम करना पड़ता है। उसी तरह से क्या कंपिटिटिव लैंग्वेज के तौर पे उर्दू को आप कैसे फरोग दे सकते हैं? हिंदुस्तान की इतनी आला नौकरियां हैं जिसमें उर्दू के तालिब इल्म जा सकते हैं। क्या हमारी एकेडमीज बड़ा कोचिंग सेंटर, रेसिडेंशियल कोचिंग सेंटर नहीं खोल सकती हैं? आप अपने स्टेट के बच्चों को खड़ा कीजिए और उसको उर्दू तो पढ़ाइए ही, दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ाने की वहीं डोर पॉइंट पे उनके इंतजामात कीजिए। आप इंतजामात कीजिएगा तो हम समझते हैं कि हर साल आपके 10, 20, 50 बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदुस्तान की बड़ी मुलाजमतों में आएंगे। ये वो मुलाजमतें हैं जो फिलहकीकत वही मुल्क को कंट्रोल करती हैं। आप मंच पे देख रहे हैं हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी मौजूद हैं। सबसे ज्यादा कलम उन्हीं का चल रहा है, सबसे ज्यादा मशवरे उन्हीं के शामिल हैं और वो बैठे हुए हैं, इसलिए प्रोग्राम भी कामयाबी से हो रहा है। तो ये हमें समझना चाहिए कि जो ब्यूरोक्रेसी हमारी है वो ब्यूरोक्रेसी कितनी पावरफुल होती है। तो हमारे बच्चे, हमारी जबान के जानने वाले बच्चे और हमारी जबान में महारत हासिल करके उन मुलाजमतों में क्यों कर नहीं जा सकते हैं, हम उसके लिए इंतजाम करें और अपने यहाँ इसकी कोचिंग का बेहतरीन इंतजाम कर सकते हैं। 4-5 सेंटर बना सकते हैं। बजट के रीएलोकेशन का एक बहुत आसान तरीका है कि जिन जो स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने बजट को बांट देना चाहिए। आप पर कभी जो बार बार होता है कि भाई इनामात दिए जाए, बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग उसमें लगते हैं कि और सिफारिशें होती हैं, वो सिलसिला ही बढ़ जाएगा कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने बजट को बांट दीजिए और उसके बाद कुछ को एक जगह बैंकिंग के कोचिंग खोल दीजिए, एक जगह सिविल सर्विस के लिए कर दीजिए, एक जगह स्टेट सर्विस के लिए जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए इंतजाम कर दीजिए। अलग अलग पूरे सूबे में आप अलग अलग काम कर सकते हैं और ये काम कल या आपको आज पता नहीं है, लेकिन 2 साल 4 साल के बाद इसके जब नतायज निकलने लगेंगे तो दुनिया हैरत में पड़ेगी कि उर्दू एकेडमी का ये काम क्या था। आप जानते हैं कि जब काम हाथ लगाते हैं, अब एक बड़ी मशहूर लाइब्रेरी है, आप सबने नाम सुना होगा, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। तो इत्तेफाक से उसके एक डायरेक्टर हुए थे आबिद रजा बेदार। तो जब डायरेक्टर हुए तो उन्होंने ये काम किया कि कुछ किताबें छापने का शुरू किया। आज उस लाइब्रेरी से 1000 से ज्यादा किताबें छपी हुई हैं। आप भी बताइए कि अगर किसी को ये बात समझ में आ सकती है कि लाइब्रेरी का काम क्या किताब छापना है, लेकिन उन्होंने ये समझा कि लाइब्रेरी से भी हम पब्लिकेशन, रिसर्च पब्लिकेशन का काम कर सकते हैं और वो आज एक बड़ा काम होकर सामने आ गया कि आप उसको एक पब्लिशिंग इंस्टीट्यूट के तौर पर भी देखते हैं। तो एकेडमी का काम सिर्फ ये नहीं है कि थोड़ा 2-4-10 सेमिनार कराकर आप रह जाइए।
एकेडमीज को बराह रास्त हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जोड़ना चाहिए। हर एकेडमी अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़ जाएगी तो बड़ी आसानी होगी उसको भी काम करने में और समाज को भी उसको रिकॉग्नाइज करने में। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का हरगिज ये मतलब नहीं होता है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ही आपकी नजर में हो। ये जब सोचिएगा तो फिर मालूम होगा कि नीचे की जमात से उर्दू पढ़ने वाले लोग नहीं आ रहे हैं और आप ऊपर सिर्फ काम कर रहे हैं। तो जो बेसिक एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन और इसके साथ साथ कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सतह पे आप किस तरह से अपने तालिब इल्मों को और असातिज़ा को एकेडमी से जोड़ सकते हैं, इसके लिए खास मंसूबा बनाइए। ये जब बनाइएगा तो आपको मालूम होगा कि एकेडमी एक बेहतरीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तौर पर भी नजर आएगी। एकेडमी कैटर करेगी जो आवाम की जरूरतें हैं वहां तक एकेडमी पहुंचेगी और एकेडमी को इससे मकबूलियत भी हासिल होगी। सिर्फ आप अपनी किताबें छापिए, आप अपने सूबे के लोगों की वह किताबें छापिए जो लिखी गई पढ़ी हुई हैं मखतूते की शक्ल में और आज तक किसी वजह से उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो उनकी किताबें छापिए। जो आज लिख रहे हैं उनकी किताबें सामने लाइए और कोशिश कीजिए कि अपने सूबे को, जब हैदराबाद की परछाई से आप निकले हैं, तेलंगाना की परछाई से निकले हैं, तो आप अपना आजादाना तशख्खुस कायम करने के लिए पब्लिकेशन का एक हथियार आपके पास होना चाहिए। आज आप जानते हैं कि नए वसाइल का जमाना है। पहले जिस सुस्त रफ्तारी से जिंदगी चलती थी उस सुस्त रफ्तारी से जिंदगी नहीं चलती है। आपका वेबसाइट ऐसा मजबूत हो आप बना सकते हैं। आप उस वजीर आला की निगरानी में काम करते हैं जो शख्स हिंदुस्तान में ये टेली कम्युनिकेशन के सिलसिले से सबसे बड़ा आदमी माना जाता है और जिसने इस मुल्क को वो मंसूबा दिया, उसने दिया कि भाई किस तरह से हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुनिया बदल सकते हैं। तो चंद्रबाबू नायडू आपके वजीर आला हैं, उनकी सरपरस्ती में काम कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए एक चैलेंज होना चाहिए कि क्या हिंदुस्तान की सारी उर्दू एकेडमियों के मुकाबले इंटरनेट का और इंटरनेट के इस्तेमाल से आप अपनी एकेडमी को एक एजुकेशन का, एक नॉलेज का खजीने के तौर पर क्या पेश कर सकते हैं। आप उर्दू की सारी किताबें जहां जहां से मिल सके वो आपके वेबसाइट पे क्यों नहीं रह सकती हैं। आप आंध्र प्रदेश में जितनी किताबें पढ़ाई जाती हैं उनको कीजिए, उनका स्कैनिंग करके आप अपने वेबसाइट पे फ्री डाउनलोडिंग के लिए डाल दीजिए। इस तरह से आप इतना काम कर सकते हैं कि मालूम होगा कि आपकी एकेडमी सिर्फ आंध्र प्रदेश की एकेडमी नहीं है, हिंदुस्तान के कुछ सूबों की एकेडमीज ने इसका ख्याल रखा। दिल्ली उर्दू एकेडमी में क्या काम अगर देखिए तो आपको एहसास होगा कि उसने एक सूबे की एकेडमी अपने को नहीं समझा, उसने समझा कि ये पूरे मुल्क की एकेडमी है। उसी तरह से कभी उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी ने भी किताबें इस अंदाज से छापी कि पूरे मुल्क के निसाब को सामने रखकर किताबें छापी। आप भी उस तौर पर चलिए कि आप सिर्फ आंध्र प्रदेश की एकेडमी नहीं है, पूरे मुल्क को एक नई रोशनी आप दे सकते हैं, नया मिजाज दे सकते हैं। अगर आप देने में कामयाब हो जाते हैं तो जिस तरह के फाल लोग आपकी एकेडमी में अभी हैं ये कोई नतीजा खेज काम कर सकते हैं। आज की ये बज़्म जो आपने सजाई, इसमें बज़्म सदफ ने आपके साथ ताउन किया और शायद इसी वजह से ये आसानी भी हुई कि आपने कौमी सतह पे कुछ लोगों को जमा किया और हमने बैनुल अक़वामी सतह पे कुछ लोगों को जमा किया और इस तरह मिलजुल कर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो गई, वेल अटेंडेड कॉन्फ्रेंस रही। हम आपसे वादा करते हैं कि आप जब चाहें, आप कोई और प्रोग्राम करना चाहें, किताबों के छापने का कुछ मंसूबा बनाना चाहें, अपने रसाला निकाले, उसमें कोई मदद की जरूरत हो तो बज़्म सदफ हमेशा आपके लिए इन सर्विसेज के लिए एक्सटेंड करने के लिए हमेशा तैयार है। और किसी काम में जो प्लानिंग का काम है और एग्जीक्यूशन का काम है, ये दोनों हम लोगों के पास ऐसी टीम है कि हम बहुत आसानी से आपको मदद देकर बेहतर से बेहतर काम आप
आप से करा सकते हैं, तो आप हमारी जब भी मदद लेना चाहेंगे हम इसके लिए तैयार हैं। सामान्य हज़रात, हम सदर तकरीब की ठोस तामीरी और बामकसद तकरीब के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले जिनका हक है वो सामान्य हज़रात का है, तो सबसे पहले मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कसीर तादाद में आपने शिरकत फरमाकर इस कॉन्फ्रेंस को, इस सेमिनार को कामयाबी से हमकिनार किया और इस बात का सबूत दिया कि आपके दिलों में उर्दू ज़बान व अदब से मोहब्बत की चिंगारी मौजूद है और हम सब मिलकर उर्दू एकेडमी का ताउन करेंगे और इस चिंगारी को शोले में तब्दील करेंगे। मेरा ताल्लुक कड़पा से है, जिसे रायलसीमा में उर्दू का मरकज कहा जाता है, लेकिन आप लोगों से मुलाकात के बाद हफीज अकरम के साथ कल दिन भर में दावतनामे तकसीम करता रहा। आप यकीन मानिए कि किसी भी शख्स ने मनफी अंदाज में उर्दू से मुताल्लिक कोई बात नहीं की। ये बहुत ही मुस्बत सोच है और इस सोच के जरिए हम आपके शहर में बल्कि पूरी रियासत में इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। चेयरमैन साहब की ये मंसूबा बंदी है कि हम उर्दू मराकिज से दूर जो इलाके मौजूद हैं वहां से अपनी तकारीब की शुरुआत की जाए। ఐలాపురం హోటల్లో కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ ప్రిజర్వేషన్ అండ్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఉర్దూ లాంగ్వేజ్ మరియు దాస్తాన్ గోయ్ కార్యక్రమం ఉంటుంది। సాయంత్రము తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో షామ్ ఏ గజల్ పాటల ప్రోగ్రాం ఉంటుంది। అదేవిధంగా నైట్ గుంటూరులో కూడా మరొకసారి గజల్ సింగింగ్ ప్రోగ్రాం మరి పోయిట్స్ ముషాయిరా ఉంటుంది। ఇందులో 40 మంది సుమారుగా ఇంటర్నేషనల్ పోయిట్స్, నేషనల్ పోయిట్స్ వారిని ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది। మరి ఉర్దూ అకాడమీ స్థాపించి 35 కోట్ల రూపాయలతోని 15 కోట్లతో ఉర్దూ ఘర్ మరియు షాదీఖానా బిల్డింగ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం జరుగుతున్నది। అదేవిధంగా 20 కోట్ల బడ్జెట్తోని ఉర్దూ లైబ్రరీస్ 36, కంప్యూటర్ సెంటర్స్ 36 రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది। అదేవిధంగా ఉర్దూ పుస్తకాలు, ఉర్దూ లాంగ్వేజ్, ఉర్దూ భాషాభివృద్ధి, ఉర్దూ మేనస్క్రిప్ట్స్ వీటిని చేయడానికి కోసం 20 కోట్ల బడ్జెట్తోని ఈ సంస్థ నడుస్తూ ఉన్నది। ఈ సంస్థ చేసే కార్యక్రమంలో ఈ కార్యక్రమము 2 రోజులుగా 3 జిల్లాలలో నిర్వహించడం జరుగుతుంది।